اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان غصے میں وزیر صلاح الدین سے کہتے ہیں اللہ مجھے تمہارے ساتھ محبت اور اعتماد کے ذریعے آزما رہا ہے صلاح الدین۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں آپ کے حضور میرا سر جھکا ہوا ہے میرے سلطان، اس لیے میں وہاں پہنچنے والا بورو کہتا ہے سر فخر سے بلند رکھیں بھائی، میں نے آپ کی بات کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ میرے سلطان ملک میودود کے قاتل تاجر راکیف کا سر اس بوری میں ہے، نوجوان غلطیاں کرتے ہیں، بزرگ انہیں گلے لگاتے ہیں، اب آپ اسے میری معافی اور توبہ کی علامت سمجھ کر قبول فرمائیں میرے سلطان۔ راکیف کا سر دیکھنے کے بعد سلطان بورو سے کہتے ہیں میں نے تم سے امید توڑ دی تھی بورو، لیکن مجھے تم نے حیران کر دیا، یہ معاملہ کیسے ہوا بتاؤ؟ تو بورو کہتا ہے ملک میودود کی یاد ہم سب کے لیے قابل قدر ہے، میں جب پہلے راکیف کو لینے گیا تھا تو میری نیت ٹھیک تھی، اب بھی ٹھیک ہے، میں بس اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکا، لیکن جب انتقام لینے کا وقت آیا تو میں پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بورو اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب کچھ میں اس نے راکیف کے گلے پر تلوار رکھی ہوئی تھی۔ راکیف نے کہا تھا بورو غور سے سوچو، تم اپنے دوستوں سے منہ موڑ کر نور الدین کے انتقام کو یقینی بنانے کے پابند نہیں ہو۔ سائرہ نے کہا تھا یقین جانو بورو، میرے بابا اپنی بات پر قائم رہیں گے، مگر بورو کا جواب تھا ایک مسلمان ایک ہی سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا، میں انصاف کو یقینی بنانے کا پابند ہوں۔ راکیف نے اسے ورغلانے کے لیے کہا تھا کون سا انصاف؟ اپنے اندر کی آواز سنو، اندر کی۔ تو بورو نے کہا تھا میرے اندر کی آواز کیا کہتی ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ انہیں زندہ رہنے دینے کی طاقت میری تلوار کی نوک پر ہے، یہ کہہ رہی ہے۔ سائرہ نے کہا تھا بورو ایسا نہ کرو، موت ہم سب کے لیے تباہی لائے گی۔ جواباً بورو نے کہا تھا اس کے برعکس جان کے بدلے جان میں زندگی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بورو نے راکیف کا گلا کاٹ ڈالا تھا۔ راکیف اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا جبکہ سائرہ اس کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے بابا بابا پکار رہی تھی۔ اس خیال کے بعد سلطان بورو سے کہتے ہیں تم نے اپنی غلطی کی تلافی کر لی ہے بورو، اب سے جو ہماری ذمہ داری ہے ہماری دہلیز پر شرمندگی کے ساتھ آنے والوں کو اپنی آغوش میں جگہ دینا ہے، اللہ تمہاری تلوار تیز کرے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان فرمان واپس وزیر صلاح الدین کو لوٹا دیتے ہیں۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں راکیف کی موت کے بعد قدس اور بازنطین کے باہمی اتحاد کے متزلزل ہو جانے کی امید کرتا ہوں میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں پھر بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، امام لیگ دستبردار نہیں ہوگا۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میرے سلطان جتنا مشکل منصوبہ تھا اگر وہاں سے زندہ نکلے ہیں تو آپ کے بعد کے صورتحال کو بھی اللہ کے حکم سے سنبھال لیں گے، اللہ پاک تم سے بھی راضی ہو بورو، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ تو بورو کہتا ہے اصل میں اللہ پاک ہمارے شہید سے راضی ہو۔ وزیر صلاح الدین پریشان ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں ہمارے شہید؟ تو بورو کہتا ہے اگر ہم صحیح سلامت یہاں تک پہنچے ہیں تو اس کی ہمت کے مرہون منت ہیں۔ وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں کس کی؟ سلطان بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور بورو کچھ کہہ نہیں پاتا۔ کچھ میں ماریا غصے میں امام لیگ سے کہتی ہے یہ سب جو ہوا میں اس پر یقین نہیں کر پا رہی ہوں، ہمارے اپنے محل میں، وہ بھی ہماری شادی کے دن۔ تو امام لیگ کہتا ہے ملکہ یہ واقعات ناقابل قبول ہیں لیکن برائے کرم پرسکون رہیں۔ اس لیے میں لاڈگائی کو آتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے شاید لاڈگائی ہماری شادی میں ہونے والی کمزوری کے بارے میں وضاحت کر سکے۔ تو لاڈگائی اسے کہتا ہے جناب یہ واقعات یقیناً ناقابل قبول ہیں، واضح طور پر سلطان نور الدین نے صلاح الدین کے آدمی کو استعمال کر کے یہاں بھیجا ہے اور آپ کے خاص دن کو خون سے رنگنا چاہا۔ امام لیگ پوچھتا ہے اب وہ کہاں ہیں؟ جواب میں لاڈگائی کہتا ہے ایک بندہ مردہ ہونے کے ناطے پکڑا گیا ہے لیکن دوسرے فرار ہو گئے۔ یہ سن کر امام لیگ کو بہت غصہ آتا ہے۔ امام لیگ بالن سے کہتا ہے اچھا تو تم بالن، کیا تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ یہ لوگ اندر کیسے داخل ہوئے؟ جواباً بالن کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے اور کس طرح اندر داخل ہوئے، یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آپ اس معاملے میں مجھ پر شک کرتے ہیں۔ یہ واضح کرنے کے لیے کہ کیا ہوا اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں تھا کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ماریا کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ اس ناخوشگوار واقعے کے ذمہ داروں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ امام لیگ پوچھتا ہے راکیف کہاں ہے؟ تو وہاں آنے والی سائرہ کہتی ہے میرے بابا مر چکے ہیں۔ یہ سن کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ امام لیگ پوچھتا ہے یہ کس نے کیا؟ تو سائرہ کہتی ہے بورو نے، صلاح الدین کے بھائی بورو نے۔ یہ سن کر امام لیگ کو بہت غصہ آتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر صلاح الدین کے تمام ساتھی خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہوئے وزیر صلاح الدین یہ جانچ رہے ہوتے ہیں کہ شہید کون ہوا ہے۔ ان کے ساتھی بہت غمگین دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور عرفہ کو نہ دیکھتے ہوئے وزیر صلاح الدین کہتے ہیں عرفہ۔ سلطانوں نے حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے۔ عزیز روتے ہوئے کہتے ہیں آمین۔ وہ چلا گیا میرے وزیر، میرا شیر بھائی، میرے دکھ سکھ کا ساتھی چلا گیا، ہم اسے نہیں بچا سکے، ہم اسے نہیں بچا سکے۔ وزیر صلاح الدین عزیز کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، ہمارا عہد دنیا کی حد تک نہیں تھا عزیز، ہم آخرت میں بھی ساتھی ہوں گے۔ یہ سن کر عزیز کو حوصلہ ملتا ہے اور وہ کہتے ہیں انشاءاللہ میرے وزیر۔ بزرگ کہتا ہے عرفہ نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی میرے وزیر۔ ادریس کہتا ہے میرا دل اندر سے جل رہا ہے، ہم نے اس کی لاش کو کافروں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا۔ اپنے ساتھیوں کو اس طرح سے دیکھ کر وزیر صلاح الدین کہتے ہیں بہادروں اپنا سر بلند رکھو، جس طرح سے ہم نے امیر شیر کو اور ملک میودود کا خون رائگاں نہیں جانے دیا، عرفہ کی جان لینے والے بھی جلد یا بدیر اس کی قیمت ادا کریں گے۔ میرے سلطان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مصر لوٹنا چاہتا ہوں، فوراً سے پہلے اپنے زخموں کو منمل کر کے نظام کو ترتیب دینا ضروری ہے۔ سلطان کہتے ہیں باحفاظت جاؤ، لیکن تمہارے جانے سے پہلے میرے پاس تمہارے لیے ایک اور ذمہ داری بھی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وزیر صلاح الدین کے سب ساتھی چلے جاتے ہیں۔ کچھ میں امام لیگ سائرہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے سائرہ فکر نہ کرو، راکیف ہم سب کے لیے قابل قدر دوست تھا، اس کا انتقام لینا ہم پہ فرض ہے۔ مگر سائرہ کہتی ہے یہ انتقام میرا انتقام ہے، تم کچھ کے بادشاہ، تمہارے محل میں تمہاری شادی میں آنے والے یہاں تک کہ اس شادی کو ممکن بنانے والے مہمان کی جان لے لی گئی، تم اس کی حفاظت کو یقینی نہیں بنا سکے۔ امام لیگ کہتا ہے میں جانتا ہوں چونکہ تمہارے والد کا درد ابھی تازہ ہے، مگر سائرہ غصے سے کہتی ہے مجھے بولنے پہ مجبور کرنے والی چیز میرے والد کے درد کا تازہ ہونا نہیں ہے، تمہاری بے احتیاطی کے مقابل میرا یہ دکھایا جانے والا غصہ ہے۔ سائرہ کو غصے میں دیکھ کر ماریا کہتی ہے تمہارے بابا میرے قریبی دوستوں میں سے ایک تھے، تم یہ بات جانتی ہو؟ جواب میں سائرہ کہتی ہے اور بازنطینی شہنشاہ کے بھی قریبی دوست تھے، آج میں نے اپنے بابا کو کھو دیا، لیکن تم لوگ میرے بابا کے ساتھ ہی ان تمام اثر و رسوخ اور ان کی طاقت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو۔ لاڈگائی کہتا ہے کم عمر خاتون، میں ذاتی طور پہ تمہارے بابا کے انتقام کا خیال رکھوں گا۔ سائرہ کہتی ہے میرے بابا مر گئے، اب نہ یہاں کوئی طاقت ہے نہ ہی ساتھ مل کر لینے والا انتقام، میرے بابا کا انتقام لیتے ہوئے میرے راستے میں مت آنا یہی کافی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سائرہ چلی جاتی ہے اور امام لیگ کہتا ہے راکیف ہمارے منصوبوں کا سب سے اہم مورا تھا، سائرہ ہمیں اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، اور اگر یہ بات شہنشاہ کے قانون میں پڑتی ہے۔ ماریا ایک دم سے کہتی ہے آپ فکر نہ کریں، سائرہ اور میرا ماضی ہے، وہ میری بات سنے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ماریا اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ ادھر سلطان وزیر صلاح الدین سے کہتے ہیں ہماری بحریہ کو جلا کر خاکستر کرنے
کرنے والا راکیف تھا، لیکن اس کا پیادہ نذیر تھا۔ نذیر اور اس کا ماتحت بدوی ٹولہ حد کو عبور کر چکا ہے، ان کے عالم اسلام کو پہنچائے گئے نقصان کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں اس معاملے کو ذاتی طور پہ دیکھوں گا سلطان۔ پھر سلطان برو سے کہتے ہیں پہلے ساتھی اور اس کے بعد راستہ۔ پرانے لوگ یہی کہتے ہیں، مجھے اس کی وجہ معلوم ہوئی جس کی وجہ سے تم نے یہ اقدام اٹھایا تھا۔ ہتھیار بردار ساتھی کا کیا مطلب ہے یہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہارا خون کھول رہا ہے اور تم خود کو روک نہیں پا رہے، لیکن نیت جتنی ہی خالص کیوں نہ ہو، تمہارے اٹھائے گئے قدم کہاں پہنچیں گے اس کا اچھی طرح حساب لگاؤ اور پھر فیصلہ کرو۔ یہ کہتے ساتھی سلطان چلے جاتے ہیں اور وزیر صلاح الدین کو غمگین دیکھ کر برو کہتا ہے میری طرف سے ایک بار پھر تعزیت بھائی۔ کچھ میں بھاگتے بھاگتے ماریا سائرہ تک جا پہنچتی ہے اور کہتی ہے رکو ہمیں بات کرنی ہے۔ تو سائرہ کہتی ہے میں آپ کو کتنا پسند کرتی ہوں آپ جانتی ہیں، لیکن اس وقت میں بات کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ ماریا اسے رکتے ہوئے کہتی ہے اصل میں اس وقت بات کرنے کی ضرورت ہے سائرہ، تمہارے بابا کی موت نے مجھے بھی بری طرح سے ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن غصے میں اٹھائے گئے قدم تمہارے بابا کا انتقام لینے کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ سائرہ کہتی ہے میرے سامنے اپنے باپ کا انتقام لینے سے روکنے والی ایک بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ماریا کہتی ہے سائرہ میں تمہیں جانتی ہوں، تم یہ کر سکتی ہو، لیکن اس کا مطلب اس میراث سے دستبردار ہونا جس کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی وقف کر دی، اور اس کا مطلب مصر کو زنگیوں کے لیے چھوڑنا ہے۔ کیا واقعی تمہاری نظر میں ایسا انتقام ہونا چاہیے؟ سائرہ کہتی ہے کیا میں اپنے باپ کے قاتل کو ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے باہر آزادانہ زندگی گزارنے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ ماریا کہتی ہے وہ زندہ رہے گا یہ سچ ہے، لیکن اس کا گزارا گیا ہر لمحہ درد جھیل کر پچھتا کر گزرے گا۔ مت بولو سائرہ کے عظیم انتقام کے لیے طاقتور اتحادیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور تمہاری اتحادی اس وقت تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ اب مصر جاؤ، تم اپنے باپ کا انتقام اپنی تلوار سے نہیں اپنے دماغ سے لوگ، یہ سب کو دکھاؤ، اپنے باپ کے ورثے کی حفاظت کرو سائرہ۔ یہ سن کر سائرہ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ قاہرہ میں کارتگن قاضی فاضل سے کہتا ہے قاضی فاضل اسے لکھو اسے، ہم نے بھیڑیے کی طرح محل پر دعویٰ بولا، بادشاہ کا وہ مشیر ہر چیز کا حساب رکھتا تھا، تم بھی لکھو، ویسے بھی تمہارے ہاتھ اس کام میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں، لکھو تم لکھو ہم نے بہادر جنگجو کی طرح لڑائی لڑی، یہاں تک کہ شمسہ خاتون نے بھی جا کر پیٹ میں چاتیون کو خنجر گھونپا، لیکن میرے بارے میں الگ سے لکھو، کارتگن کے میدان میں داخل ہوتے ہی سب چوہوں کی طرح بھاگ گئی، یہ لکھو۔ لطیف کہتا ہے ایک تلخ فتح، ہمارے پاس ایک شہید بھی ہے، عرفا کا درد ہم سب کے سینوں میں موجود ہے۔ تو کارتگن کہتا ہے ہاں یہ بھی لکھو، اس کی روح کی راحت کے لیے لکھو، اس کے لیے یہ لکھو اس نے وہی کیا جو کرنے کی ضرورت تھی۔ قاضی فاضل کہتے ہیں جو اپنے عہد سے وفادار ہوتا ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ شمسہ کہتی ہے اگر مجھے اس منصوبے کے بارے میں معلوم ہوتا تو میں آپ کو دیر نہ کرواتی، وہ اب بھی زندہ ہو سکتا تھا، یہ بات میرے دماغ سے نہیں جا رہی۔ قاضی فاضل کہتے ہیں وجہ وسیلہ ہے شمسہ، ہم نہیں جان سکتے کہ تقدیر کیا اور کیوں کرتی ہے، اس کی موت نے بہت سی جانوں کو زندگی بخشی ہے۔ کارتگن ایک دم سے کہتا ہے یہ بھی لکھو یہ بھی لکھو۔ لطیف پوچھتا ہے خلیفہ کی صورتحال کیسی ہے؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں ویسے ہی ہے، لیکن اس کے محل میں خاموشی اچھی علامت نہیں ہے۔ خلیفہ کے محل میں رضا بہت بے چینی سے ٹہل رہا ہوتا ہے، اس لیے میں سپاہی کے بیس پہ نذیر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے وزیر صلاح الدین نے راکیف کا سر قلم کر دیا ہے، وہ بھی بادشاہ کی شادی کے دوران، یہ یوبیوں کے لڑکے بورو کا کام ہے۔ تو رضا کہتا ہے اللہ غارت کرے، یعنی اب صلاح الدین کو نہیں مارا جا سکتا۔ نذیر کہتا ہے اب اس وجہ سے مجھے تھوڑی دیر کے لیے دور جانا پڑے گا۔ رضا کہتا ہے کیا تم جانے سے پہلے ہمارے محترم خلیفہ کے ساتھ آخری احسان کر سکتے ہو؟ نذیر کہتا ہے عظیم مقصد کے لیے میری جان بھی قربان۔ رضا کہتا ہے لوگوں کے درمیان شامل کیے گئے بدوی وہ کس صورتحال میں ہیں؟ تو نذیر کہتا ہے بغاوت کے دوران ہم نے بیشتر کو کھو دیا، لیکن مخصوص لوگ اب بھی موجود ہیں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو رضا کہتا ہے جبکہ ہمارے خلیفہ بستر مرگ پہ تھے، ان کی زندگی کو نشانہ بنانے والی شمسہ۔ نذیر پوچھتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اسے اغوا کر لیں؟ جواب میں رضا کہتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، صلاح الدین کو بھی اس میں شامل کر۔ وزیر صلاح الدین شام میں اپنی ماں اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، انہیں غمگین دیکھ کر فاطمہ خاتون کھانا کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہیں میں نے یہ عرفا کی یاد میں بنایا تھا، آپ کو کم از کم اسے چکھنا چاہیے۔ یہ سن کر وزیر صلاح الدین کھانا کھانے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس کے روح کو سکون دے۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں اس غم میں میری واحد تسلی یہ ہے کہ اس نے آپ کو سلطان نور الدین سے جوڑ دیا ہے۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن جلدی مجھے مصر واپس جانا ہے ماں۔ فاطمہ خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں میرا خیال تھا کہ تم لوگ کچھ دن یہاں ٹھہرو گے، ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک بار پھر حسد زدہ رہ جائیں گے۔ بورو کہتا ہے در حقیقت ہمیں حسد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ماں، آپ ہمارے ساتھ مصر جا سکتی ہیں۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں میں اپنا گھر کیسے چھوڑ سکتی ہوں، میرے پاس یتیم بچے ہیں جنہیں میری ضرورت ہے۔ تو علی کہتا ہے ہمیں قاہرہ میں یتیم بچے مل جائیں گے۔ وزیر صلاح الدین بھی کہتے ہیں ماں یتیم خانہ آپ کے بغیر چل سکتا ہے، مصر کے بچوں کو بھی آپ کے پیار کی ضرورت ہے۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے آپ کے بابا اگر وہ واپس آ گئے تو کیا ہوگا؟ بورو کہتا ہے وہ بھی مصر آ جائیں گے، ایوبی مصر میں جمع ہوں گے۔ ان کے بار بار اصرار کرنے پر فاطمہ خاتون مان جاتی ہیں اور وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ کچھ میں بازنطینی سپاہیوں کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں۔ بالین مارکوس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا تمہیں کچھ ملا مارکوس؟ تو مارکوس کہتا ہے 3 سلیبی مردہ پائے گئے ہیں، وہ اپنے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ بالین پوچھتا ہے کیا وہ خفیہ راستے سے اندر آئے تھے؟ تو مارکوس کہتا ہے ایسا ہی لگتا ہے، شادی کے لیے بہت زیادہ مشروبات فراہم کیے گئے تھے، تاجر راکیف کے حکم سے الیسا نامی ایک تاجر انہیں لایا تھا۔ یہ سن کر بالین سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف الیسا اپنے سپاہی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا سپاہی کہتا ہے اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ ہم نے کیا کیا تو یہ ہمیں کچھ میں نہیں رہنے دیں گے۔ جواب میں الیسا کہتا ہے خدا کے سوا کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا۔ سپاہی کہتا ہے افندی آپ کو ملکہ سے بات کرنے کے بارے میں اپنا خیال بدل لینا چاہیے، مگر الیسا کہتا ہے مجھے یہ کرنا ہے، کچھ قاہرہ، شام، حلب، حتیٰ کہ موصل اور یمن میں بھی مجھے ایک ایسا تاجر بننے کے قابل ہونا چاہیے جسے ہر کوئی احترام سے سلام کرے۔ مجھے ان دنوں سب کے ساتھ اور خاص طور پہ صلاح الدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وہ معلومات مانگتا ہے تو اسے ملنی چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی الیسا آگے بڑھ جاتا ہے۔ کچھ میں بالڈون اپنے باپ امار لیگ سے پوچھتا ہے ہمارا محل اب محفوظ ہے نا بابا؟ اگر وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں تو کیا ہوگا؟ امار لیگ اسے پیار کرتے ہیں تو ماریا کہتی ہے شہزادی سبیلا مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، پرنس بالڈون کی پریشانی کی وجہ آپ ہیں، برائے مہربانی مضبوطی سے کھڑی ہو جائیں۔ پھر امار لیگ سے کہتی ہے میں نے سائرہ سے بات کی تھی، اس کی خواہش میں مزید نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ مصر میں ہماری مدد کرے گی، لیکن بازنطینی شہنشاہ جیسے کہ آپ کی تعریف کرتے ہیں کام نہیں کرنا چاہیں گے، ایک ایسے بادشاہ کے ساتھ جو اپنی شادی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ امار لیگ کہتا ہے جو ہوا محض ایک حادثہ تھا، لیکن شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے میں نے انہیں ایک خط بھیجا ہے۔ ماریا کہتی ہے یہ ان کے تباہ شدہ اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ امار لیگ کہتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود آپ یہ کر رہی ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اس جگہ کو اور
यहाँ मेरे और अपने عہدے کو بھی قبول کر لیا ہے میری ملکہ، میں واقعی اس کو سراہتا ہوں۔ ماریا کہتی ہے تاجر عاقف کی موت کے باوجود بحریہ اور مصر کے بارے میں ہمارے منصوبے چھوٹے موٹے اختلافات کے ساتھ کام کرتے رہیں گے، لیکن ہر چیز سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری شادی میں یہ افسوسناک حادثہ کیسے پیش آیا۔ شہزادی سبیلا اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، آپ نے جن مہمانوں کو شادی میں مدعو کیا تھا ان میں شمسہ نامی ایک خاتون تھی اور سب جانتے ہیں کہ اس کے مصر کے وزیر صلاح الدین سے خاص قربت ہے۔ تو سبیلا کہتی ہے شمسہ میری بچپن کی دوست ہے تو اسی لیے اسے شادی میں مدعو کیا گیا تھا۔ ماریا کہتی ہے اور آپ کی بچپن کی دوست نے شادی کے دوران کاؤنٹ چاتیون کو مارنے کی کوشش کی تھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض اتفاق تھا؟ امار لیک پوچھتا ہے کیا واقعی شمسہ اس طرح کے منصوبے میں ملوث ہو سکتی ہے؟ تو سبیلا کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ شمسہ ہماری دوستی کو استعمال کرتے ہوئے ایسی حرکت نہیں کرے گی اور میں معذرت ہوا ہوں کہ میں نے اپنے دوستوں کو اپنے بابا کی شادی میں مدعو کیا تھا۔ یہ کہتے ساتھ وہ بالڈون کو لے کر چل پڑتی ہے تو امار لیک سے کہتا ہے سبیلا ناراض نہ ہو، سبیلا، مگر سبیلا نہیں رکتی اور چلی جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر صلاح الدین بورو سے کہتے ہیں شمسہ کا وہاں ہونا ایک بڑا اتفاق تھا۔ تو بورو کہتا ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ شادی کے لیے نہیں بلکہ جنازے کے لیے وہاں گئی تھی۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں مجھے اس نے بتایا تھا وہ اور شہزادی سبیلا بچپن سے ہی دوست ہیں، ایک راہبہ جس نے بچپن میں اسے پالا تھا وہ مر گئی اور وہ اس کے جنازے کے لیے وہاں گئی تھی۔ بورو کہتا ہے بھائی شمسہ خاتون۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں بورو بعد میں پھر بورو کہتا ہے بھائی جب میں نے راکیف کو مارا تو اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی، میں جب راکیف کو قاہرہ سے دمشق لا رہا تھا یہ وہی تھی جس نے سرائے میں اسے بچا لیا تھا، راکیف اس کے بعد سے محض ایک باپ بن کے رہ گیا، یہ بھی وہی تھی جس نے مجھے ان کے پیچھے جانے پر اغوا کیا تھا۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی قید میں ہیں، اس لیے میں فاطمہ خاتون وہاں پہ آ کر کہتی ہیں تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اب ہم جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ میں سبیلا میلا سے کہتی ہے ماریا نے پہلے ہی دن میرے بابا کو متاثر کر دیا، آپ جانتی ہیں کہ شادی میں جو کچھ ہوا اس کے لیے وہ شمسہ کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ تو میلا کہتی ہے سبیلا میں جانتی ہوں کہ وہ تمہاری دوست ہے، شاید اسی لیے تمہارے لیے اسے قبول کرنا مشکل ہے، لیکن شاید وہ حق بجانب ہے۔ سبیلا کہتی ہے شمسہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ تو میلا کہتی ہے میں نے اسے دیکھا ہے، میں وہاں موجود تھی جب اس نے چاتیون کو مارنے کے لیے اپنا خنجر نکالا تھا، میں وہاں موجود تھی، اس لیے میں چاتیون دروازے کے باہر پہنچتا ہے، دروازہ کھولنے لگتا ہے کہ اندر میلا سبیلا سے کہتی ہے میں تمہیں ایک راز بتاؤں سبیلا، جب شمسہ اپنے خنجر کے ساتھ چاتیون کی طرف بڑھ رہی تھی میں اسے روک سکتی تھی لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، حقیقت میں نے دعا کی تھی کہ وہ چاتیون کو مارنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ سن کر دروازے کے باہر کھڑا چاتیون غصے سے لال ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد دستک دے کر اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں آپ کی گفتگو میں خلل ڈالنے کے لیے بہت معذرت ہوا ہوں میری سرخ ستارہ میلا، یہ ہمارے گھر کیرک واپس جانے کا وقت ہے۔ قاہرہ کے ایک سرائے میں نذیر کا آدمی لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے کہتا ہے کیا آپ نے سنا آغاؤ شمسہ خاتون وہ وزیر کی نئی پسندیدہ بن گئی ہیں؟ لوگ حیرانگی سے کہتے ہیں کیسے ہوا، ہم نے ایسی بے حیائی کبھی نہیں دیکھی، توبہ توبہ، انہیں شرم کرنی چاہیے، کیا یہ اس کے لائق ہے؟ لیلا پریشان ہوتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ شخص بھڑکاتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ شمسہ خاتون نے خلیفہ کو زہر دیا تھا، اس لیے میں جمشید بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور لوگ یہ سنتے ہوئے کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ انہیں شرم آنی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناقابل یقین۔ یہ سن کر جمشید کہتا ہے ذرا ٹھہریں صبر کریں، کیا کہہ رہے ہو، یہ کس نے کہا ہے، کیا تم فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ جھوٹ ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو وزیر حضرت سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ سن کر لیلا بہت خوش ہوتی ہے اور نذیر کا آدمی کہتا ہے یہ جھوٹ کیسے ہے، یہ دن کی طرح واضح اور روشن ہے، وزیر نے فاطمی خلیفہ کو اپنی پسندیدہ عورت کے ہاتھوں زہر دلوایا۔ لوگ جمشید کی بات پر یقین نہیں کرتے اور وزیر صلاح الدین کو برا بلا کہتے ہیں، یہ دیکھ کر جمشید بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر صلاح الدین اپنے گھر والوں کے ساتھ محل پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ قاضی فاضل انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، جواباً وہ سب قاضی فاضل کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شمسہ وزیر صلاح الدین سے کہتی ہے اپنے دوست کے لیے میری تعزیت قبول کریں۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں آپ کا شکریہ شمسہ، قاضی فاضل اب سے میری ماں میرے ساتھ محل میں رہیں گی، انہیں ایک کمرہ تیار کروا دیں، ان کا اچھی طرح خیال رکھا جائے، ماں آپ کچھ دیر آرام کریں۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ خاتون بورو کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہیں۔ سب کے جانے کے بعد وزیر صلاح الدین شمسہ سے کہتے ہیں آئیے ایک لمحے کے لیے ہمیں کچھ بات کرنی ہے، شادی میں ہونے والے حادثے کے بارے میں۔ کچھ میں بالڈون سبیلا سے کہتا ہے میرے بابا کو لگتا ہے کہ میں ڈر گیا ہوں لیکن میں ڈرا ہوا نہیں ہوں۔ سبیلا اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے میرے پیارے بھائی خوف بھی ایک انسانی جذبہ ہے۔ یہ سن کر وہاں والی ماریا کہتی ہے پرنس بالڈون خوف چھوٹے اور عام لوگوں کے لیے ایک جذبہ ہے، اس شہزادے کے لیے نہیں جو ایک دن بادشاہ بنے گا۔ تو بالڈون کہتا ہے میں نہیں ڈرتا، جواباً ماریا کہتی ہے میں بھی یہی سوچتی ہوں پرنس بالڈون، تو اس لیے اب آپ کو زیادہ سنجیدہ تعلیم کی ضرورت ہے کیونکہ جب آپ تخت پر بیٹھیں گے تو آپ کو اپنی بہن کی محبت سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہوگی۔ سبیلا کہتی ہے پرنس بالڈون پہلے ہی بہترین تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہمیں اس معاملے میں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جواباً ماریا کہتی ہے یہ مدد کی پیشکش نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے جسے میں نے قدس کی ملکہ کے طور پر مناسب سمجھا ہے، اس لیے میں اس کی خاتمہ کر کہتی ہے میری ملکہ الیسا نامی تاجر نے کہا ہے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ماریا چلی جاتی ہے۔ قاہرہ میں وزیر صلاح الدین شمسہ سے کہتے ہیں یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا، آپ بادشاہ مالک کی شادی میں کیا کرنے گئی تھی؟ تو شمسہ کہتی ہے میں صرف اپنے راہبہ کے جنازے میں شرکت کرنے گئی تھی اور واپسی کے لیے تیاری کر رہی تھی، لیکن جب مجھے خبر ہوئی کہ چاتیون بھی وہاں ہوگا تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں آپ نے جو کیا وہ عام نہیں تھا، اگر ہمارے آدمی نہ ہوتے تو آپ زندہ نہ رہ پاتی، کیا آپ اسی طرح لیلا کی پرواہ کرتی ہیں؟ شمسہ کہتی ہے چونکہ آپ کا گلزارہ کا بدلہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو مجھے خود یہ کرنا تھا وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں اس پوسٹ پر بیٹھا ہوں تاکہ گلزارہ جیسو کو انصاف مل سکے، میں ان کے لیے دن رات کام کرتا ہوں۔ شمسہ کہتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے، میں نے اپنے طریقے سے کام کیا۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا اس سے مصیبت اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے علاوہ کوئی نتیجہ نکلا؟ شمسہ کہتی ہے اگر آپ اسے جرم کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ کریں جو کرنا چاہیے۔ وزیر صلاح الدین غصے سے کہتے ہیں اب سے آپ مجھے بتائے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں گی۔ شمسہ کہتی ہے مجھے یہ کون کہہ رہا ہے، آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں، مصر کے وزیر کی حیثیت سے؟ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں کیا میں نے کبھی آپ سے ایک امیر یا وزیر کے طور پہ بات کی ہے؟ شمسہ پوچھتی ہے پھر آپ کس طرح بات کر رہے ہیں، اگر کوئی صلاح الدین میرے سامنے بغیر لقب کے کھڑا ہے تو جواب دے، میں آپ کے لیے کون ہوں، آپ مجھے کیسے بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے؟ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے۔ تو شمسہ کہتی ہے میری بھلائی کو بھول جائیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کو یہ حق کہاں سے حاصل ہوا کہ آپ مجھے ایک طرف کھینچ کر مجھ سے سوال کریں، میں آپ کے لیے کیا ہوں، صلاح الدین جواب دیں۔ یہ سن کر وزیر صلاح الدین خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو شمسہ کہتی ہے مجھے میرا جواب مل گیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی مل گیا ہوگا۔ یہ کہتے
कहते साथ ही शमसा चली जाती है। कुछ में मारिया एलिसा के पास आती है तो एलिसा कहता है मुझे अपना तारुफ करवाने दे मलका। मारिया कहती है तुम्हारा नाम मैंने राकीब से सुना है, उसने कहा था कि तुम एक हुनरमंद ताजिर हो, तो बताओ तुम क्यों आई हो। जवाब में एलिसा कहता है मोहतरमा आपको इन जमीनों में एक काबिल भरोसे ताजिर की तलाश में दुश्वारी का इल्म होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता था कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बालिन चुप कर उन्हें देख रहा होता है। मारिया कहती है हमेशा एक काबिल एतमाद ताजिर की जरूरत होती है, मेरी तरफ से खबर का इंतजार करो। ये कहते साथ ही मारिया चली जाती है और एलिसा बहुत खुश होता है। बालिन कहता है तुम इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एरिक में चार्लियन मेला के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और वो काफी गुस्से में दिखाई देता है। फिर अपने जख्म को महसूस करते हुए मेला से कहता है मैं मरने वाला था एक औरत के खंजर से, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए इंतहाई शर्मनाक अंजाम होता। मेला बमुश्किल अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहती है खुशकिस्मती से आप बच गए। चार्लियन कहता है क्या सच में आपका यही ख्याल है, लेकिन एक शख्स हमेशा इतना खुशकिस्मत नहीं हो सकता। सुर्ख सितारा आपकी पेट पर वार करने वाला खंजर कभी कभी जहरीला भी हो सकता है। ये कहते साथ वो गिलास जोर से मेज पर दे मारता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है मौसम आज बहुत खूबसूरत है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये खूबसूरत औरत मेरे साथ जंगल में सैर करने जाएगी। ये कहते साथ वो मेला की जानिब बढ़ता है तो मेला खड़े होते हुए कहती है यकीनन। कायदा में वजीर सलाउद्दीन बोरो को एक तलवार दे देते हैं और कहते हैं सुल्तान ने कहा भाई। बोरो ने उम्मत मुस्लिमा के लिए कुआं खोदने की कोशिश करने वालों को उसी कुएं में दफन कर दिया। उन्होंने ये तलवार शर्फ के निशान के तौर पर दी है। ये तलवार मरहूम मलिक म्योदोद की है। तो बोरो कहता है हमारी रियासत सलामत रहे, मुझे हक इस्लाम की खातिर जो भी वजीफा सौंपा जाएगा ओहदे की परवाह किए बगैर कबूल करूंगा। इस मकसद की खातिर बहाए गए पसीने और खून का हर कतरा मेरे लिए शर्फ की बात है वजीर हजरत। अल्लाह जुल जलाल मुझे इस तलवार के साथ इंसाफ करना नसीब फरमाई। इसके साथ ही वजीर सलाउद्दीन तख्त पे बैठ जाते हैं और कहते हैं मैदान जिहाद के बगैर और जिहाद शोहदा के बगैर मुमकिन नहीं। हमारा बहादुर उर्फा जब वो बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहा था एक नामर्द की तलवार ने उसे हमसे दूर कर दिया। हमारे शहीद पर अल्लाह की रहमत हो। सब आमीन कहते हैं। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं वो काम जो हमारे शोहदा का फरीजा था अब से महल के मुहाफिज दस्तों की क़यादत और शहर की हिफाजत के बोरो साहब के कंधों पर है। इनका पहला फरीजा बदवियों रईस नजीर का सर कलम करना है जिसने हमारा बेड़ा जला दिया था और उसके साथ उसके साथियों को भी खत्म करना है। ये सुनते साथ ही बोरो अली और तोराब के साथ रवाना हो जाता है। फिर इदरीस कहता है हमने अपने भाई की लाश कुछ में छोड़ दी वजीर हजरत। जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं हमारा रिवाज है कि हम लाश पीछे नहीं छोड़ते। मैंने कुछ में जासूसों को खबर भेजी है और उन्हें जैतून के पहाड़ों पर हमारे शहीद की लाश दफन करने का हुक्म दिया है। लगता है उर्फा अल्लाह का खास खादिम था, हमसे पहले कुछ से मिलना उसे नसीब हो गया। बुजुर्ग कहता है वो हमारे भी नसीब में होगा इंशाल्लाह। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं इंशाल्लाह। अब चलें सब अपने फर्ज पर वापस चले जाएं, काजी फाजल और लतीफ के अलावा। ये सुनते साथ ही सब चले जाते हैं। उधर शमसा को आता हुआ देखकर बाजार में मौजूद ताजिर कहता है देखो देखो ये किस मुंह से यहाँ आई है। लैला शमसा के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है मैंने सुना है कि आपने मेरी माँ के कातिल को तकरीबन कत्ल कर दिया था। मैंने ये बात वजीर के सरदारान से सुनी जब वो ये बात कर रही थी। आप बहुत बहादुर हैं। शमसा कहती है काश मैं इसमें नाकाम ना हुई होती। वो सांप अभी तक सांस ले रहा है। खैर चलो वहाँ से कुछ फल खरीदते हैं। ये कहते साथ वो रेडी वाले के पास जाती है तो उससे कहता है चलो खातून चलो किसी और के पास जाओ। शमसा हैरानगी से पूछती है क्यों क्या हुआ। तो ताजिर कहता है आप जानती हैं कि क्यों, मेरी दुकान को बर्बाद ना करो चलो। शमसा कहती है आपका मसला क्या है मैं समझ नहीं पा रही। वो आगे बढ़ती है तो लैला उसे कहती है शमसा बेनी आपके बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं कि वजीर के कहने पर आपने खलीफा को जहर दे दिया है। यह सुनकर शमसा बहुत परेशान हो जाती है और नजीर का आदमी कहता है क्या ये झूठ है, क्या तुमने खलीफा को जहर नहीं दिया। जवाबन शमसा कहती है तुम सब मुझसे सुने या जाने बगैर ये फैसला कैसे कर सकते हो। नजीर का दूसरा आदमी कहता है क्या हम किसी ऐसी बेशरम खातून को सुने जो कभी वजीर का साया नहीं छोड़ती। फिर एक और कहता है तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो। शमसा कहती है ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये मेरी गलती है क्योंकि मुझे लगा कि तुम लोग सुनकर अकल से सही फैसला करोगे। लोग बाजार में जमा होना शुरू हो जाते हैं। शमसा मजीद कहती है क्या तुम वो नहीं थे जिन्होंने वजीर पर बहतान लगाया था, यहाँ तक कि मिस्र में उस पर जमीन तंग कर दी थी। क्या तुम वो नहीं हो जिन्होंने फितने की पैरवी की और बगावत की। नजीर का आदमी तमाशा लगाते हुए कहता है ऐ लोगों क्या तुम सुन रहे हो, ये औरत आई है हम पर इल्जाम लगा रही है कि हम कम अकल हैं। लोग शमसा से कहते हैं शर्म करो निकल जाओ यहाँ से। ये सुनते साथ ही लैला शमसा को लेकर चल पड़ती है और शमसा बहुत गमगीन हो जाती है। जमशेद भी परेशान होते हुए ये मंजर देख रहा होता है और लोगों से कहता है आपकी जबान की कोई हद नहीं है, जो मुंह में आता है बोल देते हो। क्या किसी पे बहतान लगाना इतना आसान है। क्या हमारे शहर में यतीम बनकर आने वाली मासूम खातून पर ऐसा बहतान लगाना आसान है। तुम जो कह रहे हो कौन सी किताब में लिखा है, हमें बताओ ताकि हम भी उसे पढ़ सकें। सुनो यतीम की रहमान के अर्श को हिला देती है। क्या तुम ये नहीं सुना हाजी, क्या तुमने ये नहीं सुना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हाजी क्या तुम ये जानते हो तुम इन अल्फाजों का बोझ नहीं उठा पाओगे। अब जहाँ चाहो अपना जहर फैलाओ। ये कहते साथ ही जमशेद चला जाता है। अंदर वजीर सलाउद्दीन काजी फाजल और लतीफ से पूछते हैं आप मुझसे पूछे बगैर और मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कैसे कर सकते हैं। जवाब में काजी फाजल कहते हैं वजीर हजरत जब खलीफा की बीमारी दोबारा शुरू हुई तो सैयदा खातून ने शमसा से खुसूसी दरख्वास्त की। लतीफ कहता है चूंकि ये मामला था हर चीज के बावजूद हमें लगा कि उन्हें इस तरह मरते हुए छोड़ देना गलत है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं शमसा को दवा देने की इजाजत देना एक बहुत बड़ी लापरवाही है। लतीफ कहता है वजीर एक औरत दारुल शिफा में आई, उसने दवा ली और बोतल बदल दी। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं क्या उस औरत का कोई सुराग मिला। तो काजी फाजल कहते हैं उसकी शिनाख्त करना मुश्किल है क्योंकि उसने चेहरा ढका हुआ था, लेकिन असल मसला अफवाह है जो लोगों की जुबान पर गर्दिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि शमसा खातून ने खलीफा को जहर देने की कोशिश की है। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन गरजते हुए कहते हैं ये झूठी अफवाहें फैलाने वालों के मुंह पर मोहर लगा दी जाए। काजी फाजल बाहिर बोरो अपने भतीजों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है नजीर को तलाश करने के लिए हमें सबसे पहले कायरा में उसके पैरोकारों को देखना होगा। वो तीनों आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। ठिकाने पर राकीफ के साथी ताजिर बैठे होते हैं। राकीफ की कुर्सी खाली पड़ी होती है। ताजिर कहता है आप सब में सबसे ज्यादा मौसर और बासर ताजिर के तौर पर राकीफ की पोस्ट पर बैठना मेरा हक है। दूसरा उसे पूछता है क्या तुम अपने आप को कलमंद समझते हो, तुम ताजिर राकीफ की जायदाद का हिस्सा भी चाहते हो और उसका कारोबार भी चलाना चाहते हो। जवाबन पहले वाला ताजिर कहता है आपको यकीनन आपका हिस्सा मिलेगा। तो तीसरा ताजिर कहता है अरे इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें कैसे मालूम कि ताजिर राकीफ का पीछे कोई वारिस नहीं है। इसलिए मैं सायरा वहाँ आती है और कहती है तुम ठीक कह रही हो। ये कहते साथ वो राकीफ की पोस्ट पर आ बैठती है और मजीद कहती है बहुत सारे मुझे पहले से जानते हैं और जो नहीं जानता वो अपने दिमाग में अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले। मैं ताजिर राकीफ की बेटी सायरा हूँ, अब से मैं अपने बाबा की मीरास खुद संभालूंगी। यह सुनकर पहले वाला ताजिर कहता है क्या तुम जैसी
सादा लो लड़की इतना बड़ा कारोबार चलाएगी? सायरा खंजर मेज में काटते हुए कहती है, जान लो कि एक बहादुर लड़की है जो खंजर का इस्तेमाल करना जानती है। वो ताजिर हंसना शुरू हो जाता है और कहता है, तुम जैसा छोटा कबूतर उकाब का सामना नहीं कर सकता। तो सायरा उसे कहती है, मैं सहरा का उकाब हूँ और जब उकाब के पर खुलते हैं तुम जैसे मर्द बाग निकलते हैं। वो ताजिर कहता है, ओ नन्हे उकाब उठो, अपने घर जाओ और वो करो जो तुम्हारे मुताबिक हो। सायरा खड़े होते हुए कहती है, मैंने समझाया लेकिन मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक ही तरीके से समझोगे, ये मेरा घर है। तो दूसरा ताजिर कहता है, अगर तुम अकेली हम सबका मुकाबला कर सकती हो तो आगे बढ़ो। सायरा कहती है, हम फिर मिलेंगे। ये कहते साथ ही सायरा चली जाती है और उसकी हिमायत करने वाला ताजिर उठ के उसके पीछे जाता है और बाहर पहुंचकर उससे कहता है, मेरा नाम आसिफ है। बोरो वहां से गुजरते हुए ये सारा मंजर देखने लग जाता है। ताजिर आसिफ मजीद कहता है, मैंने आपके बाबा के साथ कई साल काम किया और उनके हुक्म की तामील की। सायरा उसे कहती है, मैं जब दाखिल हुई तो आपके मेरे दिफा में बोले गए अल्फाज मैंने खुद सुने, आपका शुक्रिया। तो ताजिर आसिफ कहता है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपके बाबा के साथ दिया। सायरा उसे कहती है, अभी मुझे जाना है लेकिन मैं बाद में वापस आऊंगी। ये कहते साथ ही सायरा घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाती है। अली बोरो से पूछता है, क्या हम अंदर जाएं? तो बोरो कहता है, अब इसकी जरूरत नहीं है। कुछ में बालेन मार्कोस से कहता है, अलीसा की हरकतों से बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किस चीज पर मुनसिर है। ऐसा लगता है कि सलाउद्दीन ने उससे अपने लिए काम करवाने का रास्ता तलाश कर लिया है। मार्कोस पूछता है, हमें इसका सबूत कैसे मिलेगा? तो बालेन कहता है, एक तरीका है, इसलिए मैं सबीला वहाँ आती है। सबीला के आते साथ ही मार्कोस चला जाता है। सबीला बालेन से कहती है, मेरा ख्याल है कि तुम यहीं रहोगे। तो बालेन कहता है, जी हाँ, सब कुछ होने के बाद बेहतर है कि मैं यहीं कुछ देर ठहरूं। सबीला कहती है, काश तुम हमेशा के लिए यहाँ ठहर सकते। मलका मेरे बाबा को संदास कर चुकी है, पहले लड़ गए, अब मारिया को मिनिनोस जहरीले कांटों ने तख्त को घेर लिया है। फिर बालेन के हाथ पकड़ते हुए कहती है, बालेन मेरे बाबा के साथ रहो, तुम ही हो जो उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखा सकते हो। लड़गाई छुपकर ये मंजर देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं मारिया उसके पास आती है और उससे कहती है, शहजादी और बालेन का रिश्ता बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है और मैं देख सकती हूँ कि तुम किस कदर शहजादी सबीला को पानी की ख्वाहिश रखते हो, तुम उसे बहुत चाहते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे ताउन की जरूरत है। लड़गाई कहता है, आप कुछ में नहीं है मलका, ये जगह कुछ दुनिया से मुख्तलिफ है, हो सकता है कि आपको ताकत हासिल करने के लिए मेरी मदद की जरूरत हो, आप इसके बारे में सोचें। ये कहते साथ ही लड़गाई जाने लगता है तो मारिया उसे रोकते हुए कहती है, हम सबको इत्तेहाद की जरूरत है, सबसे मजबूत इत्तेहादी जासूसी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने कब्रस में लाडजोम के साथ क्या किया लड़गाई, लेकिन परेशान ना हो, जब तक तुम इत्तेहादी बन के रहोगे तुम्हारा राज महफूज रहेगा और जो भी मेरा दोस्त बनता है वो जो चाहता है उसे मिल जाता है। उसकी बातें सुनकर लड़गाई को बहुत गुस्सा आता है और मारिया चली जाती है। जंगल में चातियों मेलो और स्पाइयों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, मुझे कह रहे कि बारिश वाला मौसम बहुत पसंद है, लेकिन एक चीज है जो मुझे इस मौसम के बारे में पसंद नहीं है, वो है झूठ। यकीनन क्योंकि कभी कभार बारिश होती है, कभी धूप आ जाती है, रात में ये खुश्क और सर्द हो जाता है। मुझे दो चेहरे रखने वाला मौसम पसंद नहीं है। ये कहते साथ ही वो शिकार मार गिराता है और मजीद कहता है, बिल्कुल इसी तरह मुझे दो चेहरों वाले धोखेबाज और झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद होना चाहिए, मुनाफकत नहीं। ठीक कहा ना मैंने? मैला हाँ में सरे लाती है तो चातियों मजीद कहता है, हैरत अंगेज, तो आओ अपने दरमियान एतमाद पैदा करें, तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम वो दरख्त देख रही हो? अब उस दरख्त के पास जाओ और उसके सामने खड़ी हो जाओ। मैला उसे कहती है, मैं ऐसा क्यों करूं? तो चातियों कहता है, एतमाद कायम करने के लिए। मैला कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। चातियों से पकड़ते हुए गुस्से से कहता है, जल्दी से दरख्त के पास जाओ और उसके सामने खड़ी हो जाओ। डरते डरते मैला दरख्त के पास जा खड़ी होती है। कायरा में आगे बढ़ते हुए बोरो अपने साथियों से कहता है, लगता है नजीर वहीं होगा जहाँ सायरा गई है, जबकि सायरा भी छुपकर उन्हें देख रही होती है। बोरो मजीद कहता है, राकीफ मर गया और खलीफा बिस्तर मौत पर है। वह शख्स जो नजीर की हिफाजत कर सकता है वो चातियों है। हम उन पर कायरा और कैरे के दरमियान हमला करेंगे। यह सुनकर सायरा कहती है, आओ बोरो आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि भेड़ियों के लिए जाल कैसे लगाया जाता है। बोरो आगे बढ़ जाता है और सायरा भी कायरा में वजीर सलाउद्दीन काजी फजल से कहते हैं, राकीफ की मौत से कुछ और बाज़ंतीन के ताल्लुकात मुतज़लज़ल हो गए हैं, लेकिन बेड़े का खतरा आर्जी तौर पर खत्म हो गया। मारिया काफी बड़ा मामला है। काजी फजल कहते हैं, अगर नई मलका शराकत को जारी रखने का इंतखाब करती है तो इसका मतलब है कि हमें एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वजीर इज़्ज़त वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, हमें इसलिए फौज को मजबूत करना होगा। यह सुनकर काजी फजल कहते हैं, वो भी अपनी अस्करी क़ुव्वतों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आखिर में बाज़ंतीन से जो भी आई, ताहम असल सुलभी ताकत कुछ के बादशाह के हाथ में है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, अगर हम उनकी नकलो हरकत को देखते हुए उस सिमत में ना बढ़े तो बहुत देर हो जाएगी। हमें अगर उनकी हर हरकत का इल्म हो तो हम उन्हें रोकने के लिए इकदाम उठा सकते हैं। जंगल में दरख्त के आगे मैला बहुत खौफजदा खड़ी होती है। चातियों कुमान में तीर डालते हुए कहता है, हिलना मत कौन, हिलना मत, वरना तुम्हारा खूबसूरत सर खून में डूब जाएगा। यह कहते साथ ही वो तीर छोड़ देता है जो मैला के बिल्कुल सर के साथ ऊपर दरख्त में जा लगता है। मैला कांप जाती है और कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो चातियों कहता है, क्योंकि आप भी कह रहे कि हवा की तरह धोखेबाज हैं। मैंने आपकी शहजादी सबीला के साथ गुफ्तगू सुनी तो आप वाकई मुझे मरा हुआ देखना चाहती हैं। हाँ, ये कहते साथ ही वो एक और तीर वहीं पे छोड़ देता है। मैला बहुत डर जाती है। चातियों उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, तो कौन मुझे सच बताएं, शमसा मुझे मार डाले इसके लिए आपने खुदावन से दुआ की। फिर तीर निकालते हुए गुस्से से कहता है, बहादुर बनो बहादुर और सच बताओ। मैला कहती है, हाँ मैं चाहती थी, मैं हर रात खुदा से दुआ करती हूँ, मैं हर रात दुआ करती हूँ कि वो तुम्हारी इस लाचार जान को ले ले। यह सुनकर चातियों को बहुत गुस्सा आता है और उसे कहता है, आपकी इस कदर बेतकल्लुफी से सच बताने का शुक्रिया। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, अब से आप खुदा से पुरसकून होकर दुआ करें, आप कमरे से बाहर नहीं निकल सकेंगी, ये बात याद रखें। ये कहते साथ ही चातियों सिपाहियों के साथ चला जाता है। मैला भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। कुछ में मारिया बालेन से कहती है, मुझसे मिलने के लिए वो अहम मसला क्या है? तो बालेन कहता है, ये उस ताजिर एलिसा से मुतल्लिक है जिससे आप आज मिली हैं। मारिया कहती है, वो ताजिर राकीफ के काबिल एतमाद आदमी में से एक है। तो बालेन कहता है, वो आपके लिए और कुछ के लिए काबिल एतमाद आदमी नहीं है। एलिसा वो शख्स है जो वजीर सलाउद्दीन के आदमी को साथ दे रहा है, उसने वजीर के सिपाहियों को महल में दाखिल होने का मौका दिया। मारिया पूछती है, क्या आपको इस बात का यकीन है? तो बालेन कहता है, मुझे लगता है कि मैं आपको और बादशाह मालिक को सबूत दे सकता हूँ। यह सुनकर मारिया उसे देखने लग जाती है। कैरिक में मैला परेशान टहल रही होती है कि चातियों उसके पास आता है और उससे कहता है, आपकी दुआ कैसी जा रही है? ये जानते हुए कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको अपनी दुआ में ज्यादा मुखलिस होना चाहिए। मैला उसे कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ बंद करके मेरा ख्याल बदल जाएगा?
तो चातलियन कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं है, लेकिन अब से आपकी हर ली गई सांस मेरी मर्जी के ताबे होगी। मैं चाहता हूँ कि आप ये अच्छी तरह समझ लें। उसके हुक्म पर खातून खाना लेकर आती है। चातलियन खाने को जूठा करने के बाद कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, तो अब ये खाना खा लो। ये कहते साथ ही वो खाना रखता है और चला जाता है। चातलियन के जाने के बाद मैला मुलाजमा के हुलिये को देखने लग जाती है। कायरा में कमरे में पहुंचते साथ ही वज़ीर सलाउद्दीन फातिमा खातून से पूछते हैं माँ आपको ये कैसा लगा? तो फातिमा खातून उससे कहती है अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। तो वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं हमारे लिए आप सब कुछ छोड़ कर आई हैं, हम जो भी करें कम है। जवाबन फातिमा खातून कहती है मेरे लिए तुम सब कुछ हो। इसके साथ वो दोनों बैठ जाते हैं और फातिमा खातून कहती है मैंने बाजार में लोगों को शमसा खातून के बारे में बुरा भला कहते हुए सुना। उनका दावा है कि उसने खलीफा को जहर दिया था, हकीकत क्या है? तो वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं मुजरिम नामालूम है, कुछ लोग शमसा पर जुर्म का इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फातिमा खातून कहती है लेकिन अफवाहें यहाँ पे नहीं रुकती बेटा, अफवाहों ने उसकी साख और इज्जत को दागदार कर दिया है। मैंने जब सुना तो मुझे बहुत भारी महसूस हुआ। वज़ीर सलाउद्दीन परेशान होते हुए पूछते हैं आपने क्या सुना माँ? तो फातिमा खातून कहती है लोग कहते हैं कि वो वज़ीर की आशिक है और इसलिए तुम उसकी हिफाजत कर रही हो। यह सुनकर वज़ीर सलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं उन्होंने कायरा से मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और मैदान खाली पाया, फिक्र मत करें, जो जरूरी होगा करूंगा। ये कहते साथ ही वज़ीर सलाउद्दीन चले जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि शमसा ख्वाब में पागल जाबिर के साथ अपनी माँ को तलाश कर रही होती है। जाबिर उसे लेकर एक खूबसूरत कमरे में पहुंचता है और उससे कहता है यकीनन जन्नत में दूध से बहते हुए दरिया है। पर्दों के दरमियान से आगे बढ़ते हुए शमसा को दूसरी तरफ एक खातून खड़ी दिखाई देती है जो या अली या हुसैन या हसन पुकार रही होती है। यह सुनकर शमसा कहती है ये मेरी माँ की आवाज़ है, क्या यह औरत मेरी माँ है? वो पलटती है तो जाबिर जा चुका होता है। आवाज़ गूंजती है जो कोई उनसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करे वो जन्नत में दाखिल होता है बगैर जवाब दे हुए। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हम सब पे फर्ज है, हम इस मोहब्बत के साथ मुश्किलात में नहीं पड़ते। इस सारे मंजर को देखते हुए शमसा की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो कहती है माँ मैं आ गई हूँ। यह सुनकर वो खातून आगे बढ़कर पर्दे से बाहर आती है और कहती है मैंने ये लोरी तुम्हारे लिए उस वक्त गाई थी जब तुम बहुत छोटी थी। मैंने तुम्हारे कानों में इन नामों का जिक्र किया था। जल्द या बदेर तुम अपने आप को ढूंढ लोगी शमसा, और जब तुम अपने आप को ढूंढ लोगी तो जो तमाम जहानों के लिए रहमत है उससे मिलोगी। शमसा मुस्कुराते हुए अपनी माँ को देख रही होती है और इस ख्वाब के साथ ही उसकी आंख खुल जाती है और वो खुश होकर उठते हुए कहती है ये वही है, ये लोरी थी। उसके इस तरह उठने पर लैला उससे पूछती है शमसा बहन कौन सी लोरी? तो शमसा कहती है मेरी माँ की वाहिद निशानी जो बाकी रह गई थी, वो लोरी जिसको मैं इतने सालों से याद करने की कोशिश कर रही हूँ लैला। उधर हम देखते हैं कि वज़ीर सलाउद्दीन खिड़की से बाहर आसमान को देख रहे होते हैं। इसलिए में वहाँ आने वाले काजी फाजिल कहते हैं जो मुसीबत में फंसा रहता है वो आसमान की तरफ मुंह करता है। तो वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं मैं निकलने का रास्ता तलाश कर रहा हूँ, लेकिन इतने ज्यादा शोर शराबे में किसी के दिल की आवाज सुनना मुश्किल है। काजी फाजिल कहते हैं फिर आवाजें कम करने की कोशिश करें, शोर दिमाग की मुखालफत से दिल तक आता है। वज़ीर सलाउद्दीन पूछते हैं मैं उन्हें एक दूसरे से अलग कैसे करूँ? तो काजी फाजिल कहते हैं जो कुछ आप अपने दिल में छुपा रहे हैं उसका इकरार करके वज़ीर हज़रत शमसा खातून से आपकी मोहब्बत और लगाव वाजे करके। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं मैंने कभी इनकार नहीं किया। काजी फाजिल कहते हैं लेकिन इसका सामना भी नहीं किया। शमसा खातून आपके लिए कायरा आई थी लेकिन आपने हमेशा उसे दूर से देखा। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं आज उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे लिए क्या हूँ मैं। काजी फाजिल पूछते हैं और आपने क्या जवाब दिया? तो वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं मैं खामोश रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की परवरिश एक मुसलमान माँ करे। काजी फाजिल मैंने पहले अपने आप से यह वादा किया था, शायद मुझे इस वादे के टूटने का डर था। काजी फाजिल कहते हैं अगर आप इस राय पर अमल करते तो आप काफी अर्सा पहले शमसा को छोड़ चुके होते, लेकिन शमसा के गिर्द आपकी मोहब्बत मंडला रही है। अब आपके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची वज़ीर हज़रत। अगर आप ये नहीं कहते कि आप उससे प्यार करते हैं तो मोहब्बत का मसला आवाज को खत्म कर देगा। शमसा खातून आपके लिए क्या है, आप इस बात का जवाब नहीं दें। ये कहते साथ ही काजी फाजिल चले जाते हैं और वज़ीर सलाउद्दीन सोच में पड़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सुबह के वक्त नज़ीर सिपाहियों के साथ कहरे की जानिब रवाना दमा होता है। सिपाही उससे पूछता है नज़ीर क्या आपको लगता है कि चातलियन हमारे साथ दोबारा काम करेगा? तो नज़ीर कहता है मिस्र और शाम के दरमियान अफरा तफरी फैलाने के लिए अब भी उसे हमारी जरूरत है। राकीफ मर गया है और खलीफा बिस्तरे मर्ग पर है। मुझे कैंप में बदवियों को खाना खिलाने के लिए उसके साथ काम करना है। बोरो सिपाहियों के साथ छुपकर उसे देख रहा होता है और कहता है मुझे यकीन था कि सायरा नज़ीर के साथ आएगी, लेकिन वो यहाँ नहीं है। अगले ही लम्हे उसके हुक्म पर अली नज़ीर के साथ मौजूद सिपाही को नेजा मार कर हलाक कर देता है। ये देखकर नज़ीर चिल्लाते हुए कहता है हमला हुआ है, तैयार हो जाओ। बोरो सिपाहियों के साथ उसकी जानिब भागते हुए कहता है नज़ीर को मेरे लिए छोड़ दो। ये कहते और सुनते साथ वो सब उन पे चढ़ दौड़ते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। नज़ीर डरते हुए कहता है इन्हें करीब मत आने देना, इनका ध्यान भटकाओ। बोरो अली और तुराब मुसलसल मुनाफिकीन को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं और नज़ीर के मुनाफिक उनके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाते। बुज़दिल नज़ीर घोड़े पर ही बैठा रहता है और फिर कहता है जल्दी अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम भाग रहे हैं। ये कहते साथ वो कुछ सिपाहियों के साथ भाग निकलता है। बोरो अली और तुराब के साथ उसके पीछे जाता है। कुछ में मारिया मालिक से कहती है शहंशाह की तरफ से आने वाली खबर के मुताबिक बैरी बेड़ा आग किले के बंदरगाह पर उतरेगा। रमला में मुंतजिर टेम्पलर्स की टुकड़ी आग किले के बंदरगाह में मौजूद बैरिया में शामिल होंगे। यह सुनकर मालिक लाड़गाई से कहता है ये बहुत अहम है, लाड़गाई में चाहता हूँ कि तुम इस मामले का ख्याल रखो। सुल्तान और उद्दीन उन सिपाहियों को बैरिया में शामिल होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। मारिया कहती है उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। फिर बालिन कहता है महाराज अलीसा नामी एक ताजिर है जो वज़ीर सलाउद्दीन के लिए काम करता है, अगर ये मालूमात उस तक पहुंच जाए तो सलाउद्दीन उसके मुताबिक हरकत करेगा। मारिया कहती है अलीसा और वज़ीर सलाउद्दीन सोचेंगे कि रमला में फौजी साजो सामान है और वो अपने सिपाहियों को वहाँ भेजेंगे, लेकिन अहम फौजी साजो सामान अंताकिया के बंदरगाह में होगा। जंगियों को ऐसी झूठी फतह देना जब वो समझेंगे कि हम सिकंदरिया जा रहे हैं, हम अपने पूरे बैरी बेड़े को मुंतकिल कर चुके होंगे। यह सुनकर मालिक बालिन से कहता है कौन बालिन, माजी में जो कुछ हुआ माजी में रह गया, यह तुम्हारे लिए एक नया और बहुत अहम मौका है। ये मेरी और कुछ के साथ तुम्हारी वफादारी जाहिर करने का। नज़ीर अपने कुछ सिपाहियों के साथ बोरों से घोड़ा दौड़ाते हुए भाग रहा होता है और भागते भागते उस मुकाम पे जा पहुंचता है जहाँ पे एक बगी खड़ी होती है। बगी से सायरा ताजिर आसिफ के साथ बाहर आती है और नज़ीर से कहती है वो जल्दी यहाँ होंगे, चलो आ जाओ। घोड़े से उतरने के बाद नज़ीर कहता है सिपाहियों तुम उन्हें भटकाओ। यह सुनते साथ ही सिपाही दूसरी जानिब घोड़े दौड़ा देते हैं, जबकि नज़ीर सायरा के साथ बगी में सवार हो जाता है। बोरो अली और तुराब के साथ उन्हें तलाश कर रहा होता है और घुड़सवारों को देखते साथ ही उनके पीछे घोड़े लगा देते हैं। थोड़ी ही देर के ताकुब के बाद उन तक पहुंच जाते हैं और घोड़ों से उतरते साथ ही उन पे टूट
पड़ते हैं। कुछ में एलिसा मारिया के पास आता है तो मारिया उसे कहती है, ताजिर एलिसा, हमें फौजी साजो सामान की जरूरत है और वो भी बहुत जल्द। तो एलिसा कहता है, मोहतरमा जैसे आपका हुक्म। मारिया उसे कहती है, मेरे स्पाई कुछ के भाई तुमसे मिलेंगे, तुम ये थैली सामान के साथ उनके हवाले करोगी। ये कहते साथ ही वो थैली उसे दे देती है। तो एलिसा पूछता है, मोहतरमा ये किस लिए है? मारिया कहती है, जैसा कहा वैसा करो, सवाल पूछोगे तो तकलीफ होगी। ये कहते साथ ही मारिया चली जाती है। एलिसा थैली खोलकर देखता है तो उस पर मट्टी होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि बोरो अली और तुराब के साथ मुसलसल मुनाफिकीन को जहन्नुम वासिल कर रहा होता है और आखिरी को मारने लगता है। तो वो कहता है, रुको रुको। बोरो से पूछता है, नजीर कहाँ है? तो वो स्पाई कहता है, एक घोड़ा गाड़ी थी जो उसे ले गई। बोरो गुस्से में उसे पूछता है, कौन लेकर गया है उसे और कहाँ लेकर गया है? वो स्पाई कहता है, बताता हूँ। कायदा में खलीफा की हालत को देखते हुए रजा बहुत परेशान होता है। सिपाही आकर कहता है, वजीर सलाउद्दीन आए हैं। दूसरी तरफ शमसा तेजी के साथ काजी फाजल के पास आती है। काजी फाजल पूछते हैं, शमसा खातून खैर है? तो शमसा कहती है, हाँ मैंने ख्वाब देखा था जिसके बारे में मुझे आपको बताना है। यह सुनते साथ ही काजी फाजल शमसा के साथ आगे बढ़ जाते हैं। रजा खलीफा के कमरे के बाहर वजीर सलाउद्दीन के पास आता है। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, खलीफा कैसे हैं? तो रजा कहता है, क्या आप उस शख्स का हाल पूछ रहे हैं जिसको आपने मारने की कोशिश की? जवाबन वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, महल के सारे लोग एक हो गए और तुम एक बेगुनाह औरत पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम आग से खेल रहे हो। मैं यहाँ तुम्हें खबरदार करने आया हूँ, अगर तुम शमसा खातून के बारे में बहुतान तराशी जारी रखोगे तो मैं तुमसे इसकी बारी कीमत वसूल करूंगा। रजा कहता है, वजीर हजरत आपके साथ भी ऐसा ही होगा। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, अफसोस रजा अफसोस, अपने नाम की तरह बनो, बसूरत दीगर अगर तुम अपने हाथ से तजावुज करोगे तो तुम जो कुछ करोगे तुम पे उलट होगा। ये कहते साथ ही वजीर सलाउद्दीन चले जाते हैं और रजा को बहुत गुस्सा आता है। उधर हम देखते हैं कि शमसा का ख्वाब सुनने के बाद काजी फाजल कहते हैं, सुबहान अल्लाह, ये बहुत अच्छा और वाज़ेह ख्वाब है, इसकी वजाहत की जरूरत नहीं। शमसा कहती है, काजी फाजल, मैंने अपने आप में माँ को देखा और वो नाम जो मैंने अपनी माँ के मुंह से सुने हैं, उन्होंने अली कहा, हसन कहा, हुसैन कहा। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे कानों में इन नामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तुम जहानों के लिए जो रहमत है उससे मिलोगी। बताएं इसका क्या मतलब है? क्या मैं मर जाऊंगी? तो काजी फाजल कहते हैं, नहीं शमसा, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। शमसा पूछती है, किसे? तो काजी फाजल कहते हैं, दरूद और सलाम हो उन पर, दोनों जहानों के सरवर नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारी माँ यानी कि तुम्हारा जोर है, इसका मतलब है तुम्हारी जड़। तुमने खुद के मुंह से कहा कि तुम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी, तुम्हें इस्लाम से फैज़याब होने का शर्फ नसीब होगा। ये खुशखबरी है। ये कहते साथ ही काजी फाजल शमसा को कुरान पाक देते हुए कहते हैं, जितना तुम पढ़ोगी उतना ही तुमको मालूम होगा। जब तुम इसे पढ़ोगी तो तुम इसे पसंद करोगी। शमसा कुरान पाक लेकर मुस्कुरा देती है। उधर हम देखते हैं कि सायरा नज़ीर को लेकर उसी के ठिकाने पर जा पहुंचती है, जहाँ पे नज़ीर के सिपाही बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं और नज़ीर उससे कहता है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा सायरा। जवाबन सायरा कहती है, अब एहसान करने की बारी तुम्हारी है, मुझे अपने बाबा की मिरास हासिल करने के लिए मुसल्लह अफराद की जरूरत है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। आसिफ नज़ीर से कहता है, अगर तुम सायरा की बात मानो तो अच्छा है नज़ीर। सायरा पूछती है, क्या तुम मेरे भी उस तरह खिदमत करोगे जिस तरह तुमने बरसों तक मेरे बाबा की खिदमत की नज़ीर? नज़ीर कहता है, जी हाँ, लेकिन इस्लाम इतनाही वफादारी और अकीदत का कोई नाम तो होना चाहिए। सायरा कहती है, तुम क्या चाहते हो? बगैर तरदीद के साफ साफ बोलो। तो नज़ीर उसके बाल पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम मेरी बीवी बनो तो मेरे तमाम आदमी और यकीनन सबसे पहले मैं तुम्हारी खिदमत करने का एजाज हासिल करूंगा। यह सुनने के बाद सायरा और आसिफ को बहुत गुस्सा आता है। कायरा में वजीर सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ महल से आगे बढ़ रहे होते हैं, इसलिए में लतीफ वहाँ आता है और कहता है, वजीर हजरत बहुत कुछ हुआ लेकिन मुझे ये कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जो मैंने आपको बतानी है। ये बादशाह मार्ले के बेटे प्रिंस बाल्डोन के बारे में है। प्रिंस बाल्डोन, उसे कोढ़ की बीमारी है लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं है। वजीर सलाउद्दीन हैरानगी से कहते हैं, तुमने इस सूरत हाल को कैसे जाना? उधर नज़ीर सायरा से कहता है, मैं आपके जवाब का मुंतजर हूँ सायरा खातून, और अगर ना में जवाब हुआ तो मैं कभी नहीं मानूंगा, ये जान लें। यह सुनकर सायरा एहसान फरामोश को जवाब देती है, जबरदस्त जवाब, यानी कि उसका गला काट डालती है। ये देखकर नज़ीर के आदमी तलवारें बेनियाम करते हुए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सायरा उनके सामने खंजर फेंक देती है। वो सब के सब रुक जाते हैं और सायरा कहती है, तुम सब रुक जाओ, अपनी तलवार म्यान में रख दो। आसिफ कहता है, क्या आपको यकीन है सायरा? देखो ये कुछ भी कर सकते हैं। सायरा कहती है, जो मैं कहती हूँ वो करो। आसिफ तलवार म्यान में डाल लेता है और सायरा नज़ीर के सिपाहियों से कहती है, क्या तुमने जिस तकलीफ का सामना किया है वो काफी नहीं है? क्या तुम भूखे रह रहकर थक नहीं गए? तुम में से कितने इस बीमारी से मरेंगे? सिपाही पूछता है, क्या तुम हमें बचाओगी? तो सायरा एक की जानिब देखते हुए कहती है, क्या मैंने तुम्हारे बच्चे की पैदाइश में मदद नहीं की? फिर दूसरे की जानिब देखते हुए कहती है, क्या मैंने तुम्हें दुश्मन की तलवार से नहीं बचाया? मैं भी तुम में से ही हूँ। हाँ, मैं एक ताजिर की बेटी पैदा हुई थी लेकिन मैं आपके साथ पली बड़ी हूँ। मैं एक सहराई लड़की हूँ। क्या हम शाना बिशाना नहीं लड़े? क्या हमने मिलकर भूख प्यास नहीं मिटाई? मैं तुमसे दौलत का वादा करती हूँ, मेरे लिए लड़ो, चलो मिलकर जीतते हैं। अब या तो मुझे यहाँ मारकर मसाइब का शिकार हो जाओ या मेरे ताबे होकर सितारों तक पहुँच जाओ। सब सिपाही एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं और आखिरकार नारे बुलंद करते हुए कहते हैं, सायरा के लिए, सायरा के लिए। ये देखकर सायरा और आसिफ बहुत खुश होते हैं। कायरा में वजीर सलाउद्दीन लतीफ से पूछते हैं, लतीफ क्या आपको यकीन है? तो लतीफ कहता है, मेरे वजीर मुझे यकीन है। मैं एक तवील अरसे से जजाम के इस मसले पर काम कर रहा हूँ। मैंने जांचा है कि ये कैसे शुरू होता है, ये कैसे बढ़ता है, इसके तमाम मराहिल, हर चीज के बारे में जांच की है। कुछ देर सोचने के बाद वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, मैं समझ गया लतीफ, फिलहाल इस सूरत हाल के बारे में किसी से बात ना करें। ये कहते साथ ही वजीर सलाउद्दीन आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ताजिर एलिसा अपने सिपाही के साथ खुद से आगे बढ़ रहा होता है। सिपाही कहता है, वो इस बंदरगाह पर सामान की तकसीम में नाकाबिल यकीन हद तक नाकारा है, इसलिए में बालेन वहाँ आता है और एलिसा उससे कहता है, कौन तो बालेन, हम फिर से मिल गए, खुदा हमारी राहें जोड़ता रहता है। तो बालेन कहता है, इंसान चीजों को पेचीदा बनाता है, खुदा उन्हें आसान कर देता है, अगर आप इसके बरक्स करते हैं तो आप खसारे में रहेंगे। एलिसा कहता है, हम दोबारा मिलेंगे बालेन, शायद आपको एबलन के बाजार को बहाल करने के लिए मेरी जरूरत पड़े, कौन जानता है। ये कहते साथ ही एलिसा आगे बढ़ जाता है। कायरा के बाजार से वजीर सलाउद्दीन बहुत गुस्से में आगे बढ़ रहे होते हैं। लोग उर्फा की शहादत पर उनसे ताज़ियत कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वजीर सलाउद्दीन उस दुकान पर जा पहुंचते हैं जिसने शमसा को सामान देने से इनकार कर दिया था। वो ताजिर हंसते मुस्कुराते हुए वजीर सलाउद्दीन को खुशामदीद कहता है और कहता है, आपकी बदौलत मिस्र में बदनवानी से निजात मिली है, अल्लाह का शुक्र है। वजीर सलाउद्दीन
الدین गुस्से से कहते हैं, लेकिन बातचीत अभी भी जारी है. बाजार में कौन ये सब बकवास कर रहा है? तो ताजिर डरते हुए कहता है, वो खलीफा की बीमारी की बात कर रहे हैं, वो शमसा खातून. वजीर सलाउद्दीन गुस्से से पूछते हैं, ये अफवाहें कौन फैला रहा है? ताजिर कहता है, मैं सिर्फ अफवाहें सुन रहा हूँ मोहतरम वजीर. मैं कसम खाता हूँ, लोगों के मुंह थैलों की तरह नहीं है जिन्हें आप बंद कर सकते हैं. हर कोई बात कर सकता है. यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन लोगों से कहते हैं, अगर कोई कुछ कहना चाहे तो आकर मेरे मुंह पर कहे. तो नजीर के सिपाही उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, मैं अफवाहें फैलाने वालों में से हूँ वजीर हजरत. वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, तुम ऐसे क्यों बोलते हो जैसे तुमने सब कुछ देखा हो? नजीर का आदमी कहता है, आग के बगैर धुआं नहीं उठता. अगर अफवाहें दुरुस्त नहीं है तो आप वजाहत कर दें. यह सुनते साथ ही वजीर सलाउद्दीन उसका गला काट डालते हैं और कहते हैं, बेहतरीन कलाम वो है जो मुख्तसर और वाज़े हो. फिर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये गाफिल आदमी जो यहाँ मर गया तुम सब के लिए इबरत है. तुम्हें अपनी जबानों को लगाम डालना होगी, खास तौर पर अगर बात एक मासूम औरत के बारे में हो. ये कहते साथ ही वजीर सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं. उधर हम देखते हैं कि बोरो अपने सिपाहियों के साथ नजीर के ठिकाने पर जा पहुंचता है, मगर सब के सब जा चुके होते हैं. ये देखकर अली कहता है, वो जगह छोड़ के यहीं चचा. घोड़े से उतरने के बाद वो सब सूरत हाल का जायजा लेते हैं. मिट्टी के ठेले के पीछे किसी का पाँव देखते साथ ही बोरो एकदम से उसके पास आता है तो वो नजीर की लाश होती है. बोरो कहता है, कोई हमारे दरमियान आ रहा है. ये वही है जिसने नजीर को हमसे पहले बेचा था. ऐसा लगता है कि वो जानता था कि हम नजीर के लिए एक जाल बिछाएंगे और हम उसे यहाँ तलाश करेंगे. अली कहता है, आप क्या हुक्म देते हैं? तो बोरो कहता है, हम जाकर वापस अपने भाई को बताएंगे कि क्या हुआ है. आखिरकार वही हुआ जो हम चाहते थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर ये आदमी रहनुमा नहीं तो रहनुमा कौन है. शामी यारुकी सुल्तान के पास आता है तो सुल्तान पूछते हैं, क्या आपने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं? जामी यारुकी कहता है, मैंने मुकम्मल कर ली है सुल्तान, लेकिन जब मैं हलब वापस आने की उम्मीद कर रहा था तो मुझे कायरा जाने का हुक्म देना. सुल्तान उसकी बात करते हुए कहते हैं, हाल ही में होने वाली हर चीज के बाद ये बहुत बेहतर होना चाहिए. सलाउद्दीन को वहाँ मदद की जरूरत है. एन वक्त में आप उस जगह हमारे कायरा में वजीर सलाउद्दीन बोरो से पूछते हैं, नजीर को किसने मारा? तो बोरो कहता है, ये बदवियों में दिलचस्पी रखने वाला कोई शख्स था जिसने उसे मारा. वो अपने साथ उन बदवियों को भी ले गया जो नजीर के मातहत थे. नजीर को दफनाने के लिए भी कोई नहीं बचा. वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, ये यहाँ नहीं रुकेगा, उसका ताकुब करना मत छोड़ना. बोरो कहता है, इसके अलावा उस खातून के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, मेरा मतलब है कि राकीफ की बेटी सायरा. वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, उसे क्या हुआ? तो बोरो कहता है, वो कायरा में है. दरअसल जब मैंने उसे देखा तो सोचा कि वो नजीर को जरूर बुलाएगी. जवाबन वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, बोरो शायद वो नजीर से तुमसे पहले ही मिल चुकी हो, इसलिए मैं खलील आकर कहता है, ताजिर अली साहब से मिलना चाहता है. नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि राकीफ के ठिकाने में उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स अपने साथी से कहता है, आप सब में पुराने और तकद्दुस से माफ खलीफा के सबसे करीब होने के नाते मैं कायरा में कारोबार का इंतजाम करूंगा और राकीफ की मिरास कायम रखूंगा. इसलिए मैं सायरा आसिफ और सिपाहियों के साथ वहाँ आती है. उन्हें देखते हुए दूसरे ताजिर पूछते हैं, क्या मतलब है इसका? तो सायरा कहती है, इसका मतलब है कि मेरी ताकत अब सबका सामना करने के लिए काफी है. सिपाही तलवारें बेनियाम करते हुए ताजरों के गलों पर तान लेते हैं और आसिफ कहता है, सायरा खातून ताजिर राकीफ की वाहिद वारिस हैं और उसकी तमाम जायदाद की मालिक हैं. क्या किसी को कोई एतराज है? तो सब ताजिर एक जुबान होकर कहते हैं, नहीं कोई एतराज नहीं है. राकीफ की कुर्सी पर बैठा हुआ ताजिर भी डरते डरते उठता है और दूसरी कुर्सी पर जा बैठता है. सायरा राकीफ की कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, बहुत खूब, तो आइए काम के बारे में थोड़ी बात करते हैं. उधर एलिसा वजीर सलाउद्दीन से कहता है, मोहतरम वजीर, कुछ से बहुत कीमती मालूमात लाया हूँ. मलका मारिया ने मुझसे कहा कि मैं फौजी तरबियत का सामान कुछ के बाहर एक सुलेबी दस्ते तक पहुंचा दूं. मैंने अपना काम कर दिया. वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, क्या आप उस सामान की तादाद से फौज के हुजूम का अंदाजा लगा सकते हैं? तो एलिसा कहता है, ये यकीनी तौर पर एक बड़ा दस्ता है. वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, क्या आप ये जानने के काबिल हैं कि वो कहाँ वाक़ है? एलिसा कहता है, वो इस मालूमात को खुफिया रखते हैं. ये कहते साथ वो थैली वजीर सलाउद्दीन को दे देता है. थैली में से मट्टी निकालने के बाद वजीर सलाउद्दीन उसे बहुत गौर से देखते हैं और एलिसा कहता है, हमारे पास वाहिद सबूत यही है. मलका ने ये थैली दस्ते को भेजी जो सामान लाएगा और मुझे यकीन है कि ये खुफिया इशारा है. वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, ठीक है एलिसा, तुम जा सकते हो. खलील, फाजिल और कार्तिकन को बुलाओ. ये सुनते साथ ही खलील एलिसा के साथ चला जाता है. जंगल में बालिन एक मुकाम पर मार्कोस और सिपाहियों के साथ मौजूद होता है. मार्कोस उससे कहता है, मेरे कौन आपकी राय में क्या ये हो सकता है कि ताजिर एलिसा को किसी पे शुबा हो? जवाब में बालिन कहता है, हमें पता चल जाएगा मार्कोस. उम्मीद करते हैं कि जो गलत मालूमात हमने एलिसा को दी थी वो सलाउद्दीन तक पहुंच गई होंगी. मार्कोस कहता है, तो सलाउद्दीन के आदमी रमला में हमारा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो करके वजीर सलाउद्दीन को खुश नहीं करेंगे. मुझे इस बात की परेशानी है. बालिन कहता है, जिस तरह सलाउद्दीन अपने वतन के लिए सही करने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, मैं भी ऐसा ही करता हूँ. कुछ की बादशाही के साथ तनाज़ा इसके लिए अच्छा नहीं है. सलाउद्दीन ये समझ जाएगा. कायरा में वजीर सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं और बोरो से कहते हैं, बंदरगाह के करीब शहरों का ताकुब करो बोरो. वो बंदरगाह के इलाके के करीब वाक़ होना चाहिए. जाफा, हाफा या अका. फर्ज करें बाज़ंतीनी बैरी बेड़े अका के करीब पहुंचते हैं. इस शहर के नाम के मानी अरबी में रेत के हैं और हमें थैली में ये रेत मिली. ये सुनकर कार्तिकन खुश होते हुए कहता है, अरे देखो देखो, इसे ये बात फौरन कैसे मालूम हुई? अरे इसकी महारत को देखो. बोरो कहता है, 22 का मतलब है हमारी मंजिल रमला है. वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, नहीं, आप कायरा में रहेंगे. दूसरों को पैगाम भेजें, बुजुर्ग रवाना होने की तैयारी करें. कार्तिकन, तुम्हारा फरीजा उस फौजी दस्ते को रमला में तलाश करना है और उसे अका तक पहुंचने से रोकना है. यह सुनते साथ ही कार्तिकन बुजुर्ग के साथ चला जाता है. कैरिक किले में चातियोन मैला के कमरे में पहुंचता है मगर वहाँ मैला नहीं होती. ये देखकर चातियोन को बहुत गुस्सा आता है. वो वहाँ से बाहर जाने वाले रास्ते को देखता है, फिर कहता है, मैला मैला मैला. मैला बेस बदले कायरा के दरवाजे तक जा पहुंचती है. सिपाही उसे रोकते हुए पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? मैला अपना चेहरा यहाँ करते हुए कहती है, मैं कैरिक की कौन मैला हूँ. ये सुनते साथ ही बैबोरा आगे बढ़ता है और सिपाही पीछे हट जाता है. बैबोरा उससे कहता है, कौन मैला, तुम्हारा कायरा में दाखिल होना मना है? तो मैला कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा सलाउद्दीन से मिलना जरूरी है. खुदारा मेरी मदद करो, हंगामी सूरत हाल है. मैला साथ साथ रो रही होती है. अंदर शमसा काजी फाजल के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, पूछने, बात करने और मेरे जानने के लिए बहुत सी चीजें हैं काजी फाजल. तो काजी फाजल कहते हैं, तुम्हारे जहन को मुंतशिर करने वाली जो बात भी है जिसके बारे में तुम मुतजस्सिस हो, सब कुछ के बारे में पूछ सकती हो शमसा. अपने तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के बाद तुम जिनसे वाबस्ता हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ऐलान किया. तुम्हारी इस बात को समझ जाने के बारे में मुझे कोई शुबा नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हकीकत को बयान किया है. बातें करते करते वो दोनों आगे बढ़ जाते
हैं। उधर हम देखते हैं कि कुछ में मार्लेक मारिया से कहता है, माजी में बालेन और मैं जिस चीज से गुजरे हैं उसने हमारे ताल्लुकात को बहुत मुतासर किया, लेकिन वो इसके बारे में सही निकला जो वो कह रहा है। अगर वो सलाउद्दीन को घसीट कर गलत जगह पर ले जाए। मारिया कहती है, बालेन एक बहुत होशियार आदमी है और अब उसे अंदाजा है कि वो ठीक जानिब मौजूद है। मुझे अंदेशे में मुब्तला करने वाला एक और मसला है, शहजादी सबीला और उसका मुस्तकबिल। अब उसे लॉर्ड जोम के मातम को छोड़ देने की जरूरत है। यह सुनकर मार्लेक खुश होते हुए कहता है, क्या तुमने भी ये बात महसूस की? तो मारिया कहती है, लॉर्ड सबीला के लिए बेहतरीन शोहर है। मजीद ये कि शहजादी में उसकी दिलचस्पी सूरज की रोशनी की तरह वाज़ेह है। इस तरह की शादी हमारी सल्तनत की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगी। मत बोले इज्जत माप। लॉर्ड के पीछे वेटिकन और पोप है। यह सुनकर मार्लेक सोच में पड़ जाता है। तो मारिया उसे कहती है, मेरा यकीन करें ये शादी कुछ की बादशाहत के लिए जरूरी है। तो मार्लेक उसे प्यार करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने कुछ की बादशाहत के बारे में बहुत सोचा है। कुछ की बादशाहत के लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है और क्या बुरा, तुमने सबके बारे में सोच रखा है। मैं तुम्हारी तजवीज़ पे गौर करूंगा, लेकिन यकीनी बनाओ कि कुछ की बादशाहत में कुछ तवाज़ुन मौजूद है। जब तुम उसे कुछ दुनिया से देखो तो वैसा नहीं दिखता। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हारे ख्याल में मैंने सोचा या महसूस नहीं किया और जो मेरे इख्तियार में है। ये वक्त आने पे समझ जाओगी। कायरा में वज़ीर सलाउद्दीन आगे बढ़ रहे होते हैं, इसलिए मैं बैबोरा मैला को लेकर वहाँ पहुंचता है। वज़ीर सलाउद्दीन को देखकर मैला रोते हुए कहती है, खुदा मुझे वापस मत भेजें, यहाँ के अलावा वो मुझे हर जगह ढूंढ सकते हैं। वज़ीर सलाउद्दीन पूछते हैं, कौन? मैला कहती है, चातलियन। तुम्हारे वहाँ ना पहुंच पाने की वजह से मैं उसके साथ शादी करने पे मजबूर हो गई। ये कहते साथ ही मैला बेहोश होकर गिर जाती है। तो वज़ीर सलाउद्दीन उसे सहारा देते हैं। आगे बढ़ते हुए शमसा काजी फाजिल के साथ ये मंजर देख जाती है और परेशान होते हुए कहती है, काजी फाजिल मैंने लैला से वादा किया था, मैं जा रही हूँ। ये कहते साथ ही वो गमगीन होते हुए पलट जाती है। वज़ीर सलाउद्दीन खलील से कहते हैं, हकीम को बुलाओ फौरन। कैरेक में चातलियन बहुत परेशान दिखाई देता है, इसलिए मैं कमांडर वहाँ पे आता है तो उससे कहता है, चलो मुझे बताओ कि तुमने उसे ढूंढ लिया है। मगर कमांडर कहता है, हमने कैरेक को उलट पुलट करके रख दिया है, फिर भी हमें कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन कौंस ने कल खिदमतगारों में से एक के कपड़े तलब किए थे। यह सुनकर चातलियन गुस्से में कांपते हुए कहता है, तो फिर वो कैरेक से निकल चुकी है। आह मैला आह, तुम दुनिया के दूसरे कोने तक क्यों ना पहुंच जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम्हें ढूंढ लूंगा। कायरा में खलीफा की हालत का जायजा लेने के बाद तबीब कहता है, रजा इनकी हालत ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इनकी वापसी हो पाएगी। रजा परेशान होते हुए कहता है, तबीब कोई हल ढूंढो। मगर तबीब कहता है, काश कि मेरे बस में होता, हमें हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ये कहते साथ ही तबीब चला जाता है और रजा कहता है, अगर हमारे बाबा का अचानक इंतकाल हो जाता है तो हम क्या करेंगे? फिर अपने साथी से कहता है, अल्लाह गवाह है मेरे मोहतरम को इस हाल में पहुंचाने वाली शमसा खातून को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पीछे मुड़ने की कोई सूरत नहीं, जो करना है करो और उसे कायरा में रहने से बाज आने पे मजबूर करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये सुनते साथ ही उसका साथी चला जाता है। उधर शमसा रोते हुए अपने घर में दाखिल होती है। उसे इस तरह से देखकर लैला पूछती है, शमसा आपा ये क्या है, ये कैसी हालत है? शमसा कहती है, लैला मेरा जाना जरूरी है, वहाँ जहाँ मुझे कोई ना जानता हूँ और मैं भी किसी को ना जानती हूँ, मुझे किसी ऐसी जगह जाने की जरूरत है। लैला कहती है, मैं भी आऊंगी। तो शमसा कहती है, तुम अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें अपने पीछे नहीं घसीट सकती, तुम्हारे लिए फिक्रमंद ना रहूं, इसलिए मैं तुम्हें किसी की अमानत में दूंगी। यह सुनकर लैला बहुत परेशान हो जाती है। बाहर बाजार से बोरो आगे बढ़ रहा होता है, जबकि जमशेद ताजरों से कहता है, ये चीजें तरतीब दे, मोहतरमा आने वाली हैं, हम इस गंदगी में उनको इस्तकबाल कैसे करेंगे, मेहरबानी करके इसे साफ करो। यह सुनकर बोरो पूछता है, खैर है जमशेद, क्या परेशानी है? बोरो को देखकर जमशेद कहता है, कितना बुरा इत्तेफाक है, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं, बाजार का नया मालिक मुआयना करने आ रहा है, आज इस इलाके की तलाशी ली जानी थी, मेरा यकीन करें आपका यहाँ ना होना ज्यादा मुनासिब है। बोरो कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो जमशेद कहता है, आने वाली खातून उस शख्स की बेटी है जिसका सर आपने कलम किया था। तो वहाँ पहुंचने वाली सायरा पूछती है, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? जमशेद उसे खुशामदीद कहता है। सायरा को देखकर बोरो पूछता है, खातून तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो सायरा कहती है, मौत बरहक है और विरासत हलाल है, मैं कायरा में अपने बाप की तिजारत को संभालने आई हूँ। उधर हम देखते हैं कि बालेन मार्कोस और सिपाहियों के साथ रमला बंदरगाह पहुंच जाता है और मार्कोस से कहता है, फौजियों को मेरे हुक्म के मुताबिक तैनात करो, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। यह सुनते साथ ही मार्कोस चला जाता है। कायरा में बोरो सायरा से कहता है, अपने बाप की खून आलूद मिरास को कायरा में आकर संभालना तुम्हारे नजदीक कोई अकलमंदी का काम है क्या? सायरा उसे कहती है, मेरे वालिद को मेरी आंखों के सामने मार कर मुझे जिंदा छोड़ देना भी तो गालिबन कोई अकलमंदी का काम नहीं है। थोड़ी ही दूर खड़ा जमशेद ये मंजर देख रहा होता है। बोरो कहता है, देखो मैं ये करने पर मजबूर था, तुम्हारे बाप ने अपना जाम अपने ही हाथों से लिखा। सायरा कहती है, ये बात सबके लिए एक जैसी ही है बोरो साहब, जो कि नहीं बदलेगी, तुम भी अपना जाम खुद ही अपने हाथों से लिखोगी। सायरा आगे बढ़ने लगती है कि बोरो से पकड़ लेता है और पूछता है, नजीर को तुमने मारा? सायरा खुद को छुड़वाते हुए कहती है, मेरे रास्ते में पत्थर बिछाने वाले हर किसी का अंजाम एक जैसा होगा। यारों की बहादुर के साथ ये मंजर देख रहा होता है और कहता है, बोरो सलाउद्दीन जैसा नहीं है, ये छुप कर काम नहीं करता, सुल्तान नूरुद्दीन का हतमी हुक्म है, हम बोरो के उठाए गए हर कदम के बारे में शाम खबर भेजेंगे, ताकुब जारी रखो इसका। रमला की बंदरगाह पर मार्कोस के साथ बालेन इंतजार कर रहा होता है। मार्कोस कहता है, हमारे फौजी इलाके के इर्द गिर्द तैनात हैं। बालेन कहता है, क्या उसे लेसा को शक हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो बादशाही मार्लेक मुझे इसका जिम्मेदार ठहराएगा। करातेगन अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ पहुंच चुका होता है और कहता है, चलो एलिसा चलो, कल वो कैदी थे, आज उनकी खिदमत कर रहे हैं। बुजुर्ग कहता है, हमें फौरन मुदाखलत करनी होगी, चलो। करातेगन कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। इदरीस और बुजुर्ग करातेगन अपने साथियों के साथ रमला बंदरगाह पे हमला कर देता है। वो काफिरों को कुचलते ही चले जाते हैं। यह देखकर बालेन तलवार निकालते हुए मार्कोस के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ से इदरीस और बुजुर्ग काफिरों पे टूट पड़ते हैं। बालेन भी सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचकर हमले का हुक्म देता है और खुद भी वजीर सलाउद्दीन के सिपाहियों को काटना शुरू कर देता है। यह देखकर करातेगन गुस्से से कहता है, देखो जिसको हमने कौंत का ओहदा दिया उस कौंत को तो देखो, अब तुम देखोगे। ये कहते साथ वो काफिरों को जहन्नुम वासिल करना शुरू कर देता है। कायरा में लतीफ मैला को दुआ पिला देता है। इसलिए में वजीर सलाउद्दीन वहाँ आते हैं और लतीफ से पूछते हैं, सूरत हाल कैसी है? तो लतीफ कहता है, ये थक चुकी है, इसके लिए कुछ देर आराम करना काफी होगा। ये सुनते साथ ही वजीर सलाउद्दीन जाने लगते हैं तो मैला उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मत जाओ खुदारा मत जाओ। ये मंजर देखकर लतीफ और बैबोरा भी चौंक जाते हैं और वजीर सलाउद्दीन अपना हाथ छुड़वाते हुए कहते हैं, तुम थोड़ी देर आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। फिर बैबोरा से कहते हैं, बैबोरा अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बजाते खुद इसका ख्याल रखना। जवाब में बैबोरा कहता है, जो हुक्म जानम कुर्बान। वजीर सलाउद्दीन के देखने पर कहता है, माजरत मेरे वजीर, जो आपका हुक्म। वजीर सलाउद्दीन उसे हौसला देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बालेन बंदरगाह में मुसलमानों को शहीद करता ही चला जाता है और उसके सिपाहियों की लाशें भी मुसलसल गिर रही होती हैं।
बज़ोक तीरों से बसंतिनियों को चुन चुन के मौत के घाट उतार रहा होता है। करातेगन अलबेज और इब्राहिम की तलवारें भी जबरदस्त अंदाज में चल रही होती हैं। लड़ते लड़ते करातेगन बालेन तक जा पहुंचता है और गुस्से से कहता है, देखो क्या ये तुम्हारी वफादारी है? ये कहते साथ उस पर हमलावर होता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। टक्कर का मुकाबला होता है। करातेगन उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, तो तुमने हमें बादशाह के लिए चारा बना दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बालेन कहता है, जब भी हम आमने सामने होंगे हर बार ऐसा ही होगा, या तो तुम मुझे खत्म कर दोगे या मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। करातेगन उसे कहता है, बोलो नहीं, आगे बढ़ो। ये कहते साथ उस पर फिर से हमला कर देता है। बज़ोक बसंतिनियों को भागता हुआ देखकर कहता है, इनमें से बाकी रह जाने वाले भाग रहे हैं, क्या आके बंदरगाह पर उतरना काफिरों का हदफ नहीं है इदरीस? इदरीस कहता है, वो बंदरगाह पर नहीं उतरेंगे, वापस लौटेंगे। बालेन करातेगन के साथ लड़ी रहा होता है कि मार्कोस उसके पास आकर कहता है, हम पीछे हटेंगे कौन? बालेन एक फरमान करातेगन की जानिब उछाल देता है और कहता है, ये सलाउद्दीन को देना करातेगन। करातेगन उसे कहता है, तुम कहाँ भाग रहे हो? बात अभी खत्म नहीं हुई। तो बालेन कहता है, इस फरमान के बाद बात खत्म हो जाएगी। ये कहते साथ ही बालेन पलट जाता है और करातेगन फरमान को देखने लगता है। कायरा में फातिमा खातून कुरान पाक की तिलावत कर रही होती है। कुछ देर के बाद एक खातून आकर कहती है, वालिदा शमसा खातून लैला के साथ आपसे मिलने आई है। फातिमा खातून खुश होते हुए कहती है, उन्हें फौरन अंदर ले आओ। दरवाजा खुलते साथ ही शमसा लैला के साथ वहां दाखिल होती है। फातिमा खातून बहुत खुशी से उसका इस्तकबाल करती है और कहती है, मैं सोच ही रही थी कि जाऊं और तुमसे मुलाकात करूं, खड़ी क्यों हो? बैठो मेरी बेटी। जवाब में शमसा कहती है, जहमत ना करें, हम ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। फिर लैला को भेजने के बाद कहती है, हर चीज उलट हो गई है, बस ऐसा समझें, मैं आज लैला को आपके सपोर्ट करने आई हूँ, मैं उसे आपके सिवा किसी के सपोर्ट नहीं छोड़ सकती। फातिमा खातून कहती है, यकीनन तुम्हारी अमानत सर आंखों पर, लेकिन तुमने ये फैसला क्यों किया? तो शमसा कहती है, मुझे लगता है कि मैं अब मिस्र में नहीं रह सकती, मैं कायरा छोड़ दूंगी। यह सुनकर फातिमा खातून बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ वजीर सलाउद्दीन बालेन की जानिब से आया हुआ खत पढ़ रहे होते हैं, जिसमें लिखा होता है, तुमने कहा था कि वक्त आने पर तुम अपने फैसले खुद करोगे, लो अब हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं सलाउद्दीन। मैं सुल्तान नूरुद्दीन और तुम्हारी हिमायत का मशकूर हूँ, लेकिन मैं अबदैन के बादशाह बारिसान का बेटा बालेन हूँ, मगर मैं कुछ सल्तनत के अंदर एक मजलूम जासूस के तौर पर अपने रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं अपनी सल्तनत पर अमन से हुकूमत करूंगा, लेकिन फिर भी वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। मैं अपनी जमीनों की हिफाजत करूंगा और अपने लोगों का हाकिम बनूंगा। हम एक जैसे हैं लेकिन बिल्कुल यकसा नहीं है। अब से कुछ सल्तनत की तरफ बढ़ाए गए हर कदम पर तुम मुझे अपने सामने पाओगे, जैसा कि तुम्हारी मुकद्दस किताब में फरमाया गया है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। खत पढ़ने के बाद वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, जैसा सोचा था वैसा हुआ। बोरो कहता है, काफिरों के इत्तेहाद महदूद होता है और जब उनका मुफाद खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, बालेन बाज़मीर आदमी है जो सच्चाई को जानता है, लेकिन जब सफ़े तकसीम होती है तो हर किसी को अपनी जगह मालूम होती है। असल मसला ये है कि हम सिर्फ उनका रास्ता काट रहे हैं जो रमला से जाएंगे, हमें होशियार रहने की जरूरत है और चौकन्ना भी। तो काजी फाजल कहते हैं, उनका हदफ मुमकिन तौर पर सिकंदरिया होने का इम्कान है, हमने तमाम मुआवजों को खबरदार कर दिया है, वो हमें छोटी सी छोटी हरकत के बारे में भी खबर देंगे। इसलिए मैं खलील वहाँ आता है और कहता है, आपकी वालिदा आपसे एक अहम मसले पर बात करने के लिए आई हैं। उधर शमसा जाने के लिए तैयारियां कर रही होती है। सारा सामान बंद करने के बाद वो कुरान पाक उठा लेती है और आंखें बंद करके उसे खोलती है। उसके सामने जो आयात खुलती है उनका तर्जुमा ये है, बस जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। ये पढ़ते साथ ही शमसा गहरी सांस लेती है और अपने ख्वाब के लम्हात को याद करती है। अगले लम्हे खिड़की से पत्थर आने शुरू हो जाते हैं और बाहर से आवाजें आती हैं, हम तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहते, यहाँ से निकल जाओ निकल जाओ। ये देखकर शमसा रोते हुए एक जानिब होकर बैठ जाती है। पत्थर बहुत तेजी के साथ आ रहे होते हैं। उधर वजीर सलाउद्दीन फातिमा खातून से पूछते हैं, मां अल्लाह के लिए मुझे बताएं क्या शमसा को कुछ हुआ? तो फातिमा खातून कहती है, नहीं बेटा, कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा। उसने कहा कि वो लैला को मेरे सपोर्ट करने के बाद कायरा से चली जाएगी। यूसुफ मेरे बेटे, देखो तुम्हारी सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। ये अपने दिमाग को एक तरफ रखने और अपने दिल की बात सुनने का वक्त है। जाओ और उसे अपना इरादा बदलने पर राजी करो। मुझे डर है कि अगर तुम अभी हरकत में ना आई तो तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये कहते साथ ही फातिमा खातून चली जाती है और वजीर सलाउद्दीन बहुत परेशान दिखाई देते हैं। कुछ में खाना खाते हुए मारिया मारलेक से कहती है, बालेन रमला में वजीर सलाउद्दीन की तवज्जो मबजूल कराने में कामयाब हो गया है। जंगी समझते हैं कि उन्होंने तरसील रोक दी है, लेकिन हमारी असल ताकत अंताकिया की बंदरगाह पर बहरी बेड़े से जाहिर होगी। क्या ऐसा ही है ना लाड़गाई? तो लाड़गाई कहता है, बिल्कुल, सामान से लदे बहरी जहाज अंताकिया की बंदरगाह से रवाना हो गए हैं। वो सोचेंगे कि उनकी मंजिल सिकंदरिया होगी, लेकिन हकीकत में हम हैरान कुन तौर पे दमिता में पहुंचेंगे। फिर मारिया कहती है, आज बहुत सी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं और ये मिलती रहेंगी। क्या ऐसा नहीं है बादशाह सलामत? उसके सबीला की जानिब देखने पर बादशाह मारलेक कहता है, आप ठीक कह रही हैं मलका। फिर खड़े होकर कहता है, मैं आज आपको एक और मुबारक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। यह सुनते साथ ही सब खड़े हो जाते हैं। मारलेक मजीद कहता है, मैंने कुछ सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम फैसला किया है। हम एक बहुत अहम कदम उठाएंगे और हर चीज से बढ़कर यह फैसला मेरी जान से प्यारी बेटी सबीला की खुशी से मुतल्लिक है। अपनी मौजूदगी से हमारी ताकत में इजाफा करने वाला लाड़गए ये हमारे खानदान का हिस्सा बनने जा रहा है। मैंने लाड़गए और सबीला की शादी का फैसला किया है। यह सुनकर सबीला और विलियम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। विलियम कुछ बोलने लगता है मगर मारलेक उसे खामोश करवा देता है। लाड़गए अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है। सबीला बहुत परेशान दिखाई देती है। कायरा में वजीर सलाउद्दीन आगे बढ़ रहे होते हैं और जाकर शमसा के घर में दस्तक देते हैं, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। वो खिड़की में पत्थर देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और खिड़की से अंदर देखते हैं तो वहाँ पत्थरों के अलावा कुछ नहीं होता। काजी फाजल वहाँ पहुंचते हुए कहते हैं, मेरे वजीर शमसा चली गई है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, यहाँ जिसने भी पत्थर मारे मैं उन सब के सर पत्थरों से कुचल डालूंगा। हर एक का पता लगाएं काजी फाजल। काजी फाजल कहते हैं, वजीर हजरत एक और बात है जो मुझे खुसूसी तौर पे आपको बतानी है। मगर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, बाद में फाजल बाद में। ये कहते साथ ही वजीर सलाउद्दीन आगे बढ़ जाते हैं और काजी फाजल उनकी जानिब देखते हुए कहते हैं, आपके बच्चे एक मुसलमान माँ की गोद में परवान चढ़ेंगे वजीर हजरत, बिल्कुल जैसे मैं चाहता था। उधर हम देखते हैं कि शमसा एक पहाड़ी पर खड़े होकर कायरा की जानिब देख रही होती है और दुखी दिल के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाती है। कायरा में बोरो परेशानी के आलम में खड़ा होता है, इसलिए मैं वजीर सलाउद्दीन उसके पास से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बोरो कहता है, भाई मैं भी आ रहा हूँ। मगर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, तुम यहीं पे रुको। यह सुनकर बोरो रुक जाता है और वजीर सलाउद्दीन तने तनहा आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं सायरा बोरो के पास आती है और कहती है, मैं आपसे एक अहम मसले पर बात करना चाहती हूँ। जंगल में रजा सिपाहियों के साथ घात लगाए बैठा होता है और कहता है, ये वो रास्ता है जो कायरा को दूसरे शहरों से जोड़ता है। शमसा जहाँ भी जाएगी उसे यहाँ से जरूर गुजरना पड़ेगा। हम फौरी तौर पर उसे नहीं मारेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते शमसा रुक जाती है और सामने दो रास्ते देखकर कहती है, मैं इसे बुलाने के लिए किस रास्ते पर जाऊँ ताकि मैं अपने दिल की आग को बुझा
سکوں، اسی لیے میں رضا سپاہیوں کے ساتھ اسے گھیر لیتا ہے اور کہتا ہے تم راستے کے اختتام پہ آ گئی ہو شمسا خاتون۔ یہ دیکھ کر شمسا بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ رضا مزید کہتا ہے اس دنیا میں اب تمہارے جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شمسا پوچھتی ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو رضا کہتا ہے ہمارے خلیفہ کا بدلہ۔ یہ کہتے ساتھ وہ سپاہیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایبلن میں مارکوس بالن سے کہتا ہے رملہ میں ہماری کامیابی کے بعد بادشاہ مالک کا اعتماد بڑھے گا۔ تو بالن کہتا ہے اب سے میرے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا مارکوس۔ اس لیے میں سپاہی آ کر کہتا ہے میرے کونت آپ کے لیے ایک مہمان ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے سبیلا وہاں آتی ہے۔ سبیلا کے آتے ساتھ ہی مارکوس چلا جاتا ہے۔ بالن سبیلا سے کہتا ہے آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ سبیلا بہت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالن اسے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ تو سبیلا کہتی ہے اب میرا اس محل میں رہنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں تمہارے پاس آ گئی بالن۔ یہ سن کر بالن مسکرا دیتا ہے۔ جنگل میں رضا سپاہیوں کے ساتھ شمسا کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری جان خلیفہ کے سامنے لوں گا، وہ دیکھیں گے کہ جس غدار نے انہیں مارنے کی کوشش کی وہ مر چکی ہے۔ جواباً شمسا کہتی ہے تم جو کچھ کر رہے ہو یقیناً اس کا حساب دو گے، یہاں نہیں تو آخرت میں۔ رضا اسے کہتا ہے کیا تم جیسی ایک عیسائی عورت مجھے آخرت کے بارے میں سکھائے گی؟ چپ کرو چلو۔ وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا سامنا وزیر صلاح الدین سے ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر شمسا بہت خوش ہوتی ہے اور تلوار بے نیام کیے وزیر صلاح الدین بہت غصے میں سپاہیوں کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس خواب کو یاد کرتے ہیں جب وہ قدس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کی آواز گونجتی ہے قدس میری سب سے بڑی دعا ہے، میری سب سے مقدس محبت ہے، لیکن اب میں سمجھ گیا اور جان گیا کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستے میں ایک اور ساتھی کا ہونا ضروری ہے۔ خواب میں وہ پلٹے تھے تو پیچھے انہیں شمسا خاتون دکھائی دی تھی۔ ان کی آواز مزید گونجتی ہے اے اللہ میرے دل کو نیکی کی راہ پر چلا، قدس اور اس کے دل کے فتح کو میرا مقدر بنا۔ اس خیال کے بعد وزیر صلاح الدین غضبناک نگاہوں سے سپاہیوں کو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔